Hello everybody, welcome back. Thank you for the response on the GS1 session. It was really great to see that thousands of you benefited from that. मजे आगे देखे, and obviously thanks to Shakti again for taking up time and coming here and recording the GS2 again for you. So before we move ahead, I would just like to tell you कि उसको सेशन को देखने का तरीका यही है दैट यू मेक योर ओन नोट्स, है ना। हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं क्लास नोट्स, बट आप खुद से भी नोट्स बनाइए। हर क्वेश्चन का ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करिए यूपीएससी की साइट से एंड मेक नोट्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअली में बन क्या रहा है ना। व्हाट आर वी टीचिंग, व्हाट इज शी टेलिंग, है ना। मैम क्या बता रहे हैं कि उसमें कैसे पार्ट्स बनेंगे, इंट्रो कैसे होगा। दैट शुड बी अ गाइड टू आंसर राइटिंग फॉर यू, है ना। तो उस चीज का प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। टुडे वी आर हियर, वेलकम बैक अगेन शक्ति। Thank you so much, sir. So today we'll be having the session on GS paper 2. Okay. Perfect. So let's get started. Before we get started, you should be aware that your GS paper 2 is basically having 4 subjects. Again, the idea of telling this, we have discussed in the last class, that it is to understand the weightage that you will be giving to every subject while you are preparing for mains, because you have a very limited time span for that. So here we basically have 4 subjects. So every subject has a 25% weightage here. Okay. So here you have your polity, you have IR, then we have social justice, and then we have governance. Now, talking about myself, since I have PSIR as an optional, this paper was like something जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा input दिया नहीं था, because it went parallelly with my PSIR only. But talking about these two topics, जो कि बहुत ही static हैं, मतलब बहुत ही basic हैं, static भी हैं, your social justice and governance, इसके लिए it will be, I think I will be much better suited to talk about this. Because polity में definitely PSIR students, they know more case laws than a normal GS aspirant, because that is what we have to work on. Then comes your IR. Now, since here the question earlier, what UPSC used to do is they used to ask very basic questions in IR, to be very honest. Like if SEO is there, they'll ask, last year also they asked SEO ka role. But now we are witnessing that UPSC started bringing up that analytical angle. Correct. जैसे PSIR में हमें यूजुअली पूछा जाता था फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स दैट इज दिस इज अ सिनेरियो, हाउ द अपकमिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी शेप्ड बाय दैट और समथिंग लाइक दैट. दिस इज समथिंग वी विटनेस दिस ईयर इन द पेपर एज वेल, दैट थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया था जहाँ पे यू हैड टू अप्लाई योर ब्रेन. जैसे आई थिंक वन क्वेश्चन इज देयर अबाउट चाइना का ग्रोइंग सिग्निफिकेंस एंड हाउ द अदर वर्ल्ड हैव स्टार्टेड, लाइक द greater powers have started taking India as an alternative here. So you need to, and for they have mentioned in the economic domain, I think in the for the security purposes, and they have also talked supply chain they have mentioned. ठीक है, तो ये 3 चीजें उन्होंने दे दी ना. यहाँ पे PSIR में तो we have theories to talk about how China का presence and how we have different theories for that. I did not use that per se, the proper theory or thinkers, but I went with the content that was there in PSIR only in order to make my answers look थोड़ा enriched, because why not? अगर आपके पास कोई ऑप्शनल है तो आप ऐसी कोशिश कर सकते हो कि डू नॉट कॉपी पेस्ट द एंटायर ऑप्शनल कंटेंट, बट यू कैन पिक अप द व्यू पॉइंट्स फ्रॉम देयर एंड गिव इट हियर इन द ऑप्शनल्स. आई थिंक दैट हेल्प्स. Talking about social justice and governance, since these are the 2 topics we do not study for your prelims. वो prelims में नहीं होता, but last time also I told social justice और society के notes मैंने साथ में ही बनाए थे, because society mostly in GS paper 1 is the static aspect where you study about the caste system, you study about the globalization, and we study about the migration and everything that is happening. While in social justice we focus specifically on the government schemes, initiatives for the marginal sections or the vulnerable sections. We talk about the pressure groups, role of SHGs, etc. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक static notes इस पे prepare कर लिए, तो ये जो current oriented है, you can just take that and build upon that. अब इसमें मैंने content जो use किया, that was mostly from economic survey and budget. आपने पिछली बार बताया था. हाँ, because अगर आपको schemes चाहिए vulnerable section पे, if you need to talk about all of that, you need to have those government schemes in hand, and I think वही economic survey पे एक जगह पे it is compiled, so it becomes very easy for us to like have it handy, और आपको बहुत ज़्यादा search भी नहीं करना पड़ता, because the government has done it for you. Talking about governance, this is something I think ये इसका syllabus ही बहुत अच्छे से दिया हुआ है. It's very detailed. They mentioned everything from good governance to e-governance to citizens charter. All the terms have been mentioned. तो उस हर term पे मैंने पहले सोचा कि let me go with the topic wise notes. But then I realized if you pick up the previous year question for every topic, it's much easier to map it. Like for example, if you see e-governance, so the e-governance पे already कई questions पूछे जा चुके हैं, ठीक है. They have asked sometimes with respect to administrative convenience. Sometimes they are talking about how e-governance has made it more of citizen-centric, or what we can say democratization of governance कर दिया है, because e-governance has opened the avenues for people to participate as well, because from the comfort of home they can participate in this, ठीक है. Then they have also
asked it with respect to ease of doing business, like how single window clearance हो गया आपका and everything, how is that going to impact all of that. तो different dimensions पूछे जा चुके हैं. तो e-governance पे also there is always a detailed section in your eco survey where they talk about digital agriculture, digital education, digital health, and all of that is also a way of government trying to properly track and monitor the governance aspect. So ये भी मैंने economic survey से ही वो initiatives को have picked it up, because if you see GS paper 3, as I've already told, UPSC is only not maintaining that boundary कि ये question 1 का है कि 2 का है कि 3 का है, and they are asking it there. Like for example, DPDP Act, जो आपका data person, that has been asked in GS paper 3, yes, and we were expecting it to be in either polity because it's an act or governance, but they have asked it there. GS paper 3. हाँ, तो यहाँ पे भी what I did was कि even GS paper 3 में आप देखो use of e-aids in agriculture, ये बहुत common question है. हाँ, e-technology, तो you just get it here. और अगर e-governance का aspect आ रहा है, since India में 89% people directly or indirectly are into agriculture, you can give one dimension with respect to that. Perfect. That which makes your answer look कि बहुत multi-dimensional है. You're not just talking about administration, you're also talking about the ground level पे जो people who are working and how are they going to channelize all of that. Perfect. So this is what I did for the GS paper 2. Polity and IR, as simple as that. It went a lot overlap with my optional. For social justice, I focus more on government schemes, etc. And for governance, I picked up the topic from the syllabus, mapped it with the previous year questions, and then I created my short notes. Awesome. Idea was to have more of initiatives, more of examples. Like for example, if there's a question on pressure group, I should have example of pressure groups which are working like in every dimensions for agriculture, farmers के लिए है, हाँ, जो major है, women, farmer, businesses, हाँ, ये सारी चीजें. If you're talking about self-help group, अब देखो budget में they'll always be there some or the other schemes. जैसे drone दीदी was there, but that your SHGs and women दोनों को उन्होंने combine करा हुआ है. So all of that you can just pick up from the previous year question, etc. And that's how I created my, like, that was my approach for the GS paper 2. So last year also I had 125 plus, and this year also I had 125 plus only. So I think that worked. Perfectly worked. है ना? So that was there. So now we can go for the like topic wise discussion of each one of it. Like every question again, like that day we'll go one by one, and we'll see how I approached this. Now, also, since let's start from the very first question, which was about electoral reform, and उन्होंने specifically बात की one nation, one election. Why so? Because July में last year when new government was formed, तुरंत ये there was discussion on this, and to the high-powered committee, this suggestion has been sent, which was headed by Ramnath Kovind sir. So it was there in the news very specifically. So I think ये एक ऐसा question था जो predictable था, जो हम सबने predict किया था, and this has been asked in form of simultaneous election in 2023. मतलब ये भी नहीं है कि इन्होंने इधर-उधर का पूछा होगा. Simultaneous election was there in your 2023 itself. So because it was there in news, you see UPSC is not even keeping a track. उन्होंने last year ही पूछा है तो इस year नहीं पूछेंगे. So you have to understand that GS paper 2 पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, there's something that is visible. हिस्ट्री एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि थोड़ा स्टैटिक जा सकता है, बट पॉलिटी इज समथिंग दैट इज व्हाटएवर इज देयर इन द न्यूज़, दे विल ट्राई एंड कवर अप दैट until and unless there is something which is completely like static. अब इसको आप शुरू ही कर सकते थे इसी चीज से कि recently the government has submitted the proposal for this to high powered committee headed by Ramnath Kovind sir, and ये करके आप स्टार्ट कर सकते थे. Since that keyword here is examine, means you need to go for both positive as well as the negative aspect of it. Like अब यहाँ पे content is delivering is not our idea. Our idea is to tell you how to approach the question. So I'll go that way. My introduction started with this current context, no other trying to give an explanation that what is one nation one election or something. As I've always said कि definition based approach should be the one जब आपको कुछ नहीं आ रहा है. आज ही मैं क्लास में चीज बोल रहा था कि अगर देख के नाम क्लियर हो रहा है कि क्या मीनिंग है तो डेफिनेशन मत दो, है ना. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि वन नेशन और वन इलेक्शन पता चल रहा है ये देख के. एंड दैट टू योर आंसर, वो फिर वो एक नेगेटिव इंपैक्ट पहले ही चला गया. उन्हें इंट्रो पढ़ा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, हां, यू जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट. इवन देयर इज, आई थिंक ये मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप क्वेश्चन को ही रिफ्रेस करके इंट्रो में लिख रहे हो, दैट हैज अ बिट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट. डोंट डू दैट कि ट्राई पिकिंग इट अप एंड राइटिंग इट. इससे बेहतर है जस्ट गिव देम. उन्होंने कमिटी भी मेंशन ही करी है और वन नेशन वन इलेक्शन मेंशन ही करा है. सो व्हाई नॉट गिव दैट. ओके, हाई पावर्ड कमिटी के पास गया था, इट वाज अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड उसके बाद अब प्रॉपर, अब बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर, आपके पास स्पेस ऑलरेडी कम ही होगा. सो पॉजिटिव में भी आल्सो यू आर गिविंग 5 पॉइंट्स, नेगेटिव्स में आल्सो यू आर गिविंग अ 5 पॉइंट्स. दैट इज समथिंग
will work. Right. Now if we talk about how do we conclude it, do we take a specific stand ki should we go or should we not go, so we are nobody to decide, because even you see law commission ho, second ARC ho, ye commissions ho, they are even not very sure ki kaise karna chahiye. We are nobody who can give a definite answer to it. So what we can have is, in a conclusion, you can talk about how India ka jo pura democratic structure is based on free and fair elections, and federalism ka hamara concept hai jahan pe hum equally wo karte hain. So matlab equal weightage is given to the center, the states. So you could have given a very balanced like conclusion there कि since India follows a federalism का model where states and their rights have been protected and जो भी, तो इसके basis पे whatever the suggestions are there is yet to be seen. मतलब आप एक तरीके से definite stand नहीं ले सकते, जो मुझे लगता है that I didn't go for a definite stand. I ended by that only कि free and fair elections एक वो हैं जिसमें India has a federal model. So we try to respect the rights of both the center and state. So we go that way. The suggestion is yet to be seen कि जो भी future में होता है by balancing or looking at every positive and the negative aspect. So this is how I approached. इसमें जैसे आर्टिकल्स का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कितने कोट करने हैं, क्या करना है? अगर इसमें मैं देखूं तो आई डोंट थिंक यू नीड, अगर ये इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन होता हम आर्टिकल कोड कर सकते थे डेफिनेटली. यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती कोई आर्टिकल कोड करने की जरूरत है. आई डिडंट कोट एनी. सो अब मान लो वही एज ए मेंशन, अगर इलेक्शन कमिश्नर पे क्वेश्चन होता, या चीफ इलेक्शन कमीशन का एक्ट भी आया था अभी न्यूज में रिसेंटली, अमेंडमेंट वाज देयर, इवन देयर दे वुड हैव गिवन अस सिग्निफिकेंस. उसका आर्टिकल 324 से आप शुरू कर सकते थे इफ यू वांटेड. अदरवाइज यहाँ आई डिडंट फाइंड एनी रेलेवेंस ऑफ दी आर्टिकल. यहाँ करंट कंटेक्स्ट नहीं करना. हाँ, मतलब ये है कि पॉलिटी है तो आर्टिकल देना ही देना है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देना ही देना है. नहीं, यू कैन फॉलो एनी वन मेथड. जब यहाँ पे कमिटी रिकमेंडेशन ऑलरेडी थी, सो आई थिंक वी नीड टू गो फॉर like committee recommendation was already there, so we could have went with that. Now if we talk about the second question, now explain and distinguish. All right, it is talking first you need to explain, you also need to distinguish between two bodies that are given, lok adalat and your arbitration tribunal. ठीक है, whether they entertain civil as well criminal cases. This is what I'm trying to say कि इन्होंने इस बार बहुत specific कर दिए थे questions को. If this question was on ADR, alternate dispute resolution, I think it would have been much easier for us to go through. मतलब आराम से हो जाता. यहाँ पे you need to have specifics of these two. Correct. Because they have asked, you need to differentiate between them. तो आपके पास at least 5 points होनी चाहिए दोनों पे, so that you can differentiate, and then you can talk about whether or not they are like Correct. entertaining criminal cases, civil cases and all. Correct. Now this could have been the intro में आप ADR mention कर सकते थे कि these both are a form of alternate dispute resolution. ठीक है, या तो अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है जो बात कर रही हो कि हाउ ADRs कितना फंक्शन कर रहे हैं, कितने केसेस ये हैंडल कर रहे हैं, इफ यू हैव सच काइंड ऑफ रिपोर्ट, तो उससे भी आप शुरू कर सकते थे. दैट वुड हैव बीन इजियर, बट आई बिगन विद दिस थिंग दैट दे आर एन एग्जांपल ऑफ alternate dispute resolution mechanism that the government has taken. That is basically a priority in order to ensure there is easy dispute resolution and or rapid or speedy dispute resolution is there. Now इतना ये तो intro because it's a 10 marker. अब बहुत ज़्यादा big intro नहीं लिख सकते, तो I introduce them as ADR. उसके बाद I have created a proper table. एक तरफ I went with लोक अदालत and here I went with the arbitration tribunal. Now they both are statutory, they're based under an act. Here you can mention भाई ये लोक अदालत का आपका legal service act है, इसके अंदर है legal services act वाला है. Second thing here for this we have arbitration some tribunal act है इनका specifically जिसके अंदर ये bodies बनती हैं. ये थोड़ा सा informal setup है, ये थोड़ा सा आपका फॉर्मल सेटअप में जाएगा बिकॉज दे हैव अ काउंसिल. लेकिन दोनों में फिर आप देखो कि इन लोगों के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग ही होते हैं बिकॉज व्हेन दे आर सेटअप फॉर अ पर्पस, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो दे हैव देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग. आप किसमें आप हायर कोर्ट में जाकर इसको अपील कर सकते हो, इनको आप यूजुअली अपील नहीं कर सकते हो. तो जो भी डिफरेंसेस है प्रॉपर एक चार्ट फॉर्म में मैंने मेंशन करा. उसके बाद दे हैड दिस स्पेसिफिक थिंग वेदर दे कैन एंटरटेन सिविल और क्रिमिनल केसेस और नॉट. तो आई बिकॉज इफ यू वांटेड यू कुड हैव मेंशनड हियर ओनली कि ये मोस्टली क्या करते हैं आपके सिविल केसेस देखते हैं एंड दे गो फॉर सिविल केसेस एंड criminal cases also but which are less than 7 years वो non compoundable वाले. compoundable वाले में they don't go for it. थोड़ा सा I think यही कोई difference था इन दोनों में. so that I could have done it here only but क्योंकि उन्होंने cases को separately पूछा हुआ है तो उसको अलग से लिखना है. तो मैंने लिखा कि भाई types of cases जो होते हैं तो I divided it कि civil cases एक होते हैं, criminal cases होते हैं. criminal में भी we have two non compoundable and non compoundable. तो इसके आगे mention कि भाई these are by both this and this but this में ये इसके अगेंस्ट ये इसके. तो ये थोड़ी clarity भी बन गई and थोड़ा आपका जो आंसर है more structured भी दिख गया. तो this could be one way of going about this answer of उसके बाद आप जब एंड कर रहे हो इसको तो you could have told कि how there are backlogs of cases that are existing and these can act as a one method of speedy justice. या फिर आप DPSP से लेकर आ जाओ थोड़ा उसका रेफरेंस अगर if you want and you can give the article का रेफरेंस there from the DPSP also so that your answer looks more like enriched. आप कुछ भी सजेशन दे रहे हो it's backed by some article, backed by some Supreme Court judgment that makes the answer look more like balanced, or I can say more credible.
credible. तो ये मैंने इसका, this is how I approached this question. परफेक्ट. मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीजें हैं जो देखने वाली हैं, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. सबसे पहला क्या है कि व्हेन, ये सेम चीज महात्मा गांधी वर्सेस टैगोर वाले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर रहे थे, लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स का डिफरेंस पूछा था. तो इंट्रो में आप क्या करते हो, आप सिमिलैरिटी बताते हो. रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी जी का डिफरेंस पूछा तो आप इंट्रो में क्या बता रहे हो कि भाई दोनों नेशनलिस्ट थे, दोनों इंडियन नेशनलिज्म के लिए काम कर रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दोनों स्टालवर्ट्स थे अपने अपने पर्टिकुलर अपनी सेंचुरी के. सो हियर आल्सो है ना, मैम ने क्या बताया कि दोनों एडीआर के मैकेनिज्म है. पॉइंट नंबर 1 दैट हैज टू बी नोटेड कि डिस्टिंग्विश आया तो ये कर लो, ऊपर करंट अफेयर क्या था, इंट्रो के टेम्पलेट बन गए. सेकंड, डिस्टिंग्विश अगर आया, पिछले जीएस 1 में हमने क्या देखा, 3 आ गए थे, 3 में डिस्टिंग्विश करना था तो टेबल नहीं बना पाओगे, 2 में करना है तो टेबल बनाओ. तीसरी चीज जो यहाँ से याद करनी है वो है ये कि अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा है, सेपरेट हेडिंग बनाओ ही बनाओ. एग्जामिनर से छूट गया अगर आपने नहीं देखा, उन्होंने, आपका कोई रीचेकिंग का कोई फंडा नहीं है भाई, नंबर गए. सो प्लीज मेक श्योर दैट इट इज विजिबल. ये 3 चीजें यहाँ से आपको, जैसे एज सर सेड, ये सब पार्ट्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है. सो इफ यू इवन थिंक कि मैं इसी के पार्ट में कर दूं, टाइम बच जाएगा, तो इट कैन बी अ वे कि सही बात है, अगर एग्जामिनर ने वो लास्ट पॉइंट आपका स्किप कर दिया ऊपर का, फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. इट्स बेटर इफ दे हैव आस्क्ड इट इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, गो इन अ सेपरेट स्टेटमेंट सो एज टू मेक इट मच मोर विजिबल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द क्वेश्चन इज ऑन ग्रोथ ऑफ योर कैबिनेट सिस्टम दैट हैज रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी. मतलब ये कहने की बात कह रहे हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक्चुअली में वर्क करना चाहिए था. लेजिस्लेचर जो है, पीपल आर अपॉइंटिंग एंड दे आर डिबेटिंग, डिस्कसिंग. पर हम देख रहे हैं कि कैसे कैबिनेट जो है, जो कि कुछ 15 से 20 मेंबर्स का पूरा वो है, एंड दैट इज गेटिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट. एंड इसकी वजह से जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, जो हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन है, वो कम होता जा रहा है. इसमें आराम से आप पीआरएस के डेटा से शुरू कर सकते थे, बिकॉज दे टॉक अबाउट कि कैसे बिल्स का पैसेज जो है, इनमें टाइम बहुत कम लगता है. और टाइम कम लगने का मतलब स्क्रूटनी भी कम हो रही है. रैपिडली पैसेज ऑफ बिल्स हो रहे हैं, कितने % ऑफ बिल जो है अब कमिटीज को नहीं सेंड हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. तो पीआरएस का अच्छा खासा डेटा आपको इसमें मिल जाएगा, जिसपे यू कुड हैव गिवन अकॉर्डिंग टू द पीआरएस करके, यू कुड हैव गिवन कि ये डेटा इतना % ऑफ बिल जो है, जो पहले इतना आवर्स लगते थे, अब इतने आवर्स में ही वो पास हो जा रहे हैं, which raises a questions on the credibility of the debates and discussions that were going on. तो आपने क्या हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये इशू तो है, बिकॉज ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है ना कि दिस हैज रिजल्ट, नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट इट. तो यू, एक तो होता है टोन ऑफ द क्वेश्चन. सो ये एक इशू है एंड दिस इज अ प्रोमिनेंट इशू दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट आल्सो. तो आराम से हम डेटा से शुरू कर सकते थे. देन कम्स योर बॉडी पार्ट. ये क्वेश्चन वही है कि आप भी डेफिनेट स्टैंड नहीं ले सकते हो कि कैबिनेट बहुत स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रूथ. पार्लियामेंट को हमने भाई, आज भी द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी इन आवर कंट्री. वी कैन नॉट से कि अब ये कर रहे हो तो आप अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आवर कंट्री शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट, जो आप कर नहीं सकते. सो एंड वी डोंट हैव ऐसे डेफिनेट डेटा ना ये आर्गुमेंट भी सपोर्ट करने के लिए, बट थोड़ा बहुत बता सकते हो कि हाँ कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिस वजह से ये चल रहा है. नाउ नेक्स्ट में यू नीड टू, अब ये बॉडी जो है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इस बार क्वेश्चंस ऐसे एनालिटिकल पूछे हैं कि सेपरेट हेडिंग दे के पॉइंट वाइज जैसे हम कर लेते थे पहले, वैसे नहीं हो पाएगा. तो व्हाट आई डिड इज कि फर्स्ट पीआरएस के डेटा से मैंने शुरू किया एंड देन आई वेंट अहेड विद इट कि हाउ द कैबिनेट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स. दैट वाज माय पॉइंट. एंड मैंने सब कुछ फिर मेंशन करा कि थोड़ा बहुत आपके पास डेटा है कि कैसे ऑर्डिनेंस रूट हो रहा है, कैसे आपका वो स्किप हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से जो कैबिनेट है वो इन्फ्लुएंशियल होती जा रही है, किस तरीके से. अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि आधार को मनी बिल की तरफ क्यों पास किया गया. तो ये चीजें हैं जो कि हम, दैट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल एंगल, दैट्स समथिंग दैट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल. तो आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से हमें दिख रहा है कि कैबिनेट का डिसीजन मोर सुपर पावर होता जा रहा है इन ओवर द पार्लियामेंट्री बॉडीज. ये चीज लिखने के बाद देन यू अगेन कम व्हाइल ऑन द अदर हैंड द पार्लियामेंट करो, फिर यू डिस्कस ना कि आज भी जो है ये है हमारे पास जॉइंट लेवल जो कमिटीज हो गई, आपकी सेलेक्ट कमिटीज हो गई, बिल का जो अभी भी रेफरल हो रहा है इतना % कम हुआ है बट स्टिल अभी भी हो रहा है. तो ये चीजें आप दो ताकि आप ये बताओ कि नहीं पार्लियामेंट सुपरमेसी एकदम कंप्लीटली इरोड नहीं हो गई है. यू कैन नॉट गो वन डायमेंशन इन दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट टोटली सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट. तो एल्यूसिडेट उन्होंने लिखा कि मतलब आप बताओ आपको क्या लगता है ये सच है या नहीं. तो आप पॉजिटिव पहले बताओ इनका और नेगेटिव भी बताओ कि हाँ कैबिनेट कैसे स्ट्रांग हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट कैसे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एग्जिस्ट करती है. Also, you could have talked about, I think, parliamentary supremacy versus parliamentary sovereignty is also a concept. जिसपे I think previous year question में already आया है कि British have that parliamentary sovereignty का concept, हमारे पास supremacy का concept है और 3 organs है, executive है, judicial, and there is a checks and balance. आप ले आओ judicial review जो exist करता है कि even when there is a such kind of the cases are happening, Supreme Court will intervene. They have something called as basic structure doctrine कि even if cabinet is trying to do things on their own, they cannot overpower because भाई
people's participation is a part of the basic structure doctrine. तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा एंगल देके I tried justifying my answers. Correct. And in the end you say कि though the cabinet has been becoming इतना, but India का जो basic है that is Structure based on that is based on people's participation and parliamentary supremacy. So saying that it is having इतना would मतलब to an extent is not right. तो इस तरीके से आप आंसर करो. अब इस क्वेश्चन में I'll say इंटरव्यू में भी हुआ था कि दे हैव आस्क्ड मी सर्टेन क्वेश्चंस. दे वर टॉकिंग अबाउट शुड देयर बी qualification for MLAs, मतलब education qualification होना चाहिए नहीं होना चाहिए. So there also but you have no definite answer. Right. If you say yes, तो फिर भाई आप खाली एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हो, बट पीपल्स के साथ हैविंग दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग. तो यू कैन नॉट से विद अ डेफिनेट, यू से दैट शुड बी पीपल्स चॉइस. इफ दे आर लाइक इफ दे वांट इट टू बी मोर इतना, तो वो आना चाहिए डिमांड पीपल की तरफ से, उसके बेसिस पे होगा. तो 2-3 टाइम्स मैंने सेड पीपल्स चॉइस, दे देमसेल्व्स सेल कि आपने हर आंसर में बोला पीपल्स पार्टिसिपेशन. आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी गुड पॉइंट टू नोट. मतलब दिस वाज स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम द बोर्ड मेंबर. हां, तो ये देखो ना, parliamentary supremacy shows people's participation. You need to uphold this in your answer till the last, because that is what is government stand, that is what is our constitution based upon. तो किसी भी एंगल पे आप अथॉरिटेरियन दिखाने की कोशिश मत करो. That is not something we should be doing. तो ये मैंने किया था in this answer, that though I showed कि how cabinet क्यों ये statement आया है वो मैंने दिखा दिया, but in the end I told how parliamentary supremacy exists, how India has a 3 पूरा balance of power, वो अपना जो separation of powers के साथ checks and balances है, तो एक तरीके से है एक लिमिट तक, but we are trying to have Supreme Court भी कैसे intervene करता है when this thing happens, and all the cases, judicial review, curative petitions and all of that. So I brought that angle here as well. नहीं, very important thing to notice here कि भाई एक तो जो बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि टेल वर्ड्स को लेके, तो अगर यहाँ पे मान लो एलुसिडेट में कमेंट लिखा होता है, एक्सप्लेन लिखा होता है, एनालाइज लिखा होता, तब भी आपका अप्रोच यही रहता है कि आप नहीं बता सकते कि भाई कैबिनेट सिस्टम में सब कुछ हो गया. हाँ. नहीं, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द बेसिक एथोस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कुछ भी बोले, नहीं कर सकते आप वो चीज. तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये ठीक है, व्हाटएवर इट इज गिवन, क्रिटिकली इवैल्यूएट भी हो सकता था यहाँ पे, है ना, बट द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, again here I'll tell, एक क्वेश्चन और आया था इंटरव्यू में, where they talk about parliamentary versus presidential system, and sir give me all the positive points of presidential system, and he said don't you think India need to shift there. अब वो भी एक तरीके का था कि that question is also something you आप, लेकिन इंडिया का तो parliamentary system है ना, आप टोटली कह ही नहीं सकते कि उस पे जाओ. You तो there comes a point कि हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स होंगे, that changing the system is not a solution. I think reforming the system is a better. तो आप यहाँ पे बात कर लो ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग फॉर ऐसा कि आप टोटली स्विच कर रहे हो. तो ये कोशिश करनी है कि आपके कोई भी आंसर हो, दे शुड अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे आप स्कीम्स की बात कर रहे होते हो, तो योर व्यू शुड अलाइन विद द गवर्नमेंट व्यू. अगर गवर्नमेंट स्वच्छ भारत मिशन लेकर आ रही है और आपका दे आर आस्किंग अबाउट टॉक अबाउट द मतलब इसका बेनिफिट है ना, तो आप गवर्नमेंट के स्टैंड से अलाइन करो, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके का, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड लो. अब इवन अगर गवर्नमेंट ने कहीं रिपोर्ट में लिखा भी है कि लेट्स गो फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यू कैन नॉट गो बिकॉज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज टू बी योर बेस ऑफ योर आंसर. तो वो थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है. दैट इज व्हाट आई डिड इन दिस आंसर एज वेल. करेक्ट, अंडरस्टूड, टोटली अंडरस्टूड. So this was your question number 3, right? Now if we talk about the question number 4, okay, so duty of CAG is not merely to ensure legality of expenditure but also is proprietary. अब ये एक ऐसा है जहां पे you could have started with the article, ठीक है, ये आराम से स्टार्ट. तो आर्टिकल इतना जो है कॉन्स्टिट्यूशन है that provides for the CAG, and then जिसका रोल क्या है आप करके थोड़ा सा बता सकते थे. आप ये भी बता सकते थे कि हमारे पास इंटीग्रेटेड CAG का ऑफिस है, that is not different for state and center, it is the same, a single body audits both the center and this. तो ये इस तरीके से आप कुछ देकर इंट्रो you could have started. अब यहाँ पे भी आता है हमेशा कि भाई our CAG is more of a auditor, our CAG is not a comptroller, मतलब ये नहीं है. तो एक तरीके से यही बात कर रहे हैं कि खाली एक्सपेंडिचर की लीगैलिटी क्यों देख रहे हैं, लेट देम गो बियॉन्ड दैट. तो ये चीजें अगेन बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस इन PSIR अच्छे से, चाहे वो NHRC हो, उनका रोल हो, चाहे एवरीथिंग की हम बात करते हैं कि किस तरीके से वी नीड टू स्ट्रेंथन देम, हाउ दे हैव बिकम बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाउ मोर और लेस दे आर लाइक अ टीथलेस टाइगर और ऐसे पेपर टाइगर, कुछ ऐसा टर्म्स हम यूज करते हैं. हाँ, तो ये चीजें आप लिखो उनको ये दिखाने के लिए कि दो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना के आपने इनको एम्पावर तो करा है, बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग सर्टेन पावर. अब हो अच्छा, अब जैसे मान लो कोई स्कीम बननी है या मान लो हम ही कुछ काम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट होता है जिसका हम कॉस्ट एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है. अब मैंने कह दिया कि 10,000 में आई एम एबल टू डू दिस इंटायर वर्क, सम वर्क,
ठीक है, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ फुलफिल 10,000 में, आई नीड 2,000 वो, Yes. बट वो कैग के पास पहले तो रिपोर्ट चली गई ना कि ये प्रोजेक्ट 10,000 में होना था, तो वो 2,000 इज नाउ सीन एज एन ओवर एक्सपेंडिचर, वो उसी तरीके से देखेंगे, द इंटेंट बिहाइंड इट दैट इज नॉट समथिंग दे टेक इनटू कंसिडरेशन। तो ये चीजें वही थी कि भाई आपने, इन्होंने सिंपली कमेंट का मतलब है आप बताओ कि इनका रोल, इनका यही रोल होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे आप लिख सकते थे भाई ऑडिटिंग का रोल तो ये कर रहा है सेंटर में, ठीक है, बट बियॉन्ड द जो विजडम है, यू नो व्हाट द थॉट प्रोसेस इज गोइंग बियॉन्ड, इवन बिफोर द मनी इज बीन टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्चुअली वहां पे कैग का वो लगाओ कि ये प्रोजेक्ट है, ये एक्सपेंडिचर है, बट दिस माइट टेक इतना, क्योंकि अभी हमने ग्राउंड सिचुएशन एनालाइज नहीं करा है, तो ऑल ऑफ दैट कुछ हैव बीन देयर टू टॉक अबाउट इट कि किस तरीके से हम कैग के रोल को और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी बॉडी हो, कोई भी, बी इट कॉन्स्टिट्यूशनल, बी इट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नन ऑफ देम इज लाइक फुली वर्किंग एट इट्स पोटेंशियल। हर जगह कुछ ना कुछ वो होगा ही। जैसे एनएचआरसी है, अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसमें एक सजेशन आता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, ठीक है, इनको थोड़ा फाइनेंशियल पावर दे दो। व्हाई आर दे डिपेंडिंग ऑन अदर इंस्टीट्यूट्स टू गेट द रिपोर्ट्स और गेट थिंग्स एनालाइज? दे शुड हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। तो वो कॉमन चलता है, जैसे हम बोलते हैं कि टेम्पलेट बना लो कॉमन, और कोई भी बॉडी आए बस चेंज द नेम एंड गो विद द सेम थिंग। दिस विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग आपका खुद का ये जो आप हर टॉपिक के लिए नोट्स बना रहे हो, तो वो तो अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ईसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हाउ डू वी ब्रिंग चेंजेस इन देम? तो वही है कि आप किस तरीके से आप रिफॉर्म्स के अंदर बात कर सकते हो। तो रिफॉर्म्स जो सजेस्ट किए जा चुके हैं, मैं एनी लॉ कमीशन ने अगर कोई रिफॉर्म सजेस्ट किया हुआ है, इफ देयर इज सम रिफॉर्म सजेस्टेड बाय योर सेकंड एआरसी, तो ये चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो अभी यू माइट हैव कम अक्रॉस ऑल ऑफ दीज ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे, बाय एंड कर सकते हो कि सिंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द पर्पस इज टू ऑडिट, बिकॉज जो फंड्स होते हैं दैट आर पीपल्स फंड जिस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है, बट देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर नॉट जस्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन बट ऑल्सो प्रॉपर डिस्पर्सल और प्रॉपर जो आप निकाल जो फंड्स ले रहे हो उसके पहले भी कोई ना कोई चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग हाउ आई लाइक वर्कड हियर फॉर दिस वन सेशन, दिस लाइक क्वेश्चन आई वेंट अहेड, क्योंकि यहाँ पे इट वेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, then we talked about all the like nuances, and then we can end ki हाँ, in though ये constitutional body है, but we need to strengthen its functioning, so that can be done in the ठीक है, understood, perfect. Now, this is also something that is very normally fixed कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो लोकल बॉडीज पे आना ही आना है, be it 73rd, be it 74th. Now you see this year how they have changed the question. That's what I'm saying. इस बार उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिए ही नहीं थे। लास्ट ईयर अर्बन लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन था, तो हम we could have answered it directly. यहाँ they are asking analyze the role of local bodies in providing good governance at local level. Now this is something जो आप आराम से आंसर कर सकते थे। ये 10 मार्कर है, और थोड़ा देखो तो क्वेश्चन को कितना डीप किया उसके बाद, टू ब्रिंग आउट द प्रोस एज वेल एज कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले बोला कि आप पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसके बारे में बताओ, इनका रोल बताओ, इनका रोल आप एनालाइज करो, ठीक है। सेकेंड थिंग इन्होंने पूछा क्या हम रूरल जो बॉडीज है मतलब पंचायत और जो अर्बन बॉडीज है क्या उनको मर्ज कर सकते हैं या नहीं, उसके आपको पॉजिटिव्स भी बताने हैं और उसके आपको नेगेटिव्स भी बताने हैं। मोस्टली तो मेरे दिमाग में नेगेटिव्स ही आएंगे, बिकॉज वी हैव सीन कि दो अलग अलग रीजन्स हैं, दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो मर्जिंग देम विल अगेन माइट लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ वन और द अदर सोसाइटी, फिर वही रीजनल इंबैलेंस एग्जिस्ट करने लगेगा। तो पॉजिटिव्स यहाँ पे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट देन ऑल्सो देयर इज अ रूल की सिंस रूरल बॉडीज जो हमारी पंचायत हैं दे ऑल्सो डिराइव समथिंग आर्टिकल 40 है डीपीएसपी का, जो जहां से आई थिंक दे आर डिराइविंग देयर, उसके बाद इनको 73rd अमेंडमेंट एक्ट से भी कॉन्स्टिट्यूशन वो दिया गया, बट अर्बन बॉडीज हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं था। तो क्योंकि इसका आर्टिकल 40 था, दैट्स व्हाई दे से कि भाई पंचायत, हाँ दैट्स व्हाई दे से कि पंचायत आर इन अ मोर बेटर सिचुएशन देन द म्युनिसिपल अंटिल अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट मेगा सिटीज लाइक दिल्ली वगैरह में चल जाओ, मुंबई में चल जाओ, इट्स गुड फंक्शनिंग, बट आप कुछ स्मॉल सिटीज में जाओ, वहां पे अर्बन बॉडीज की बहुत बुरी सिचुएशन है, दे आर लिटरली नॉट फंक्शनिंग एट इट फुल पोटेंशियल। तो वहां पे तो ये सब आर्गुमेंट्स देके आपको बता सकते थे कि हाउ इट वेंट। नाउ स्टार्टिंग दिस, अब यहाँ पे आई स्टार्टेड विद अगेन 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक अमेंडमेंट एक्ट से मैंने शुरू किया, हैज प्रोवाइडेड फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। Aim was to ensure the grassroots democracy. तो ये एक बेसिक, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा है, आप बहुत ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं लिख सकते, you cannot go with a very like you know elongated intro 4-5 लाइन का, so I just gave a very simple 73rd, 74th और एक कीवर्ड मैंने मेंशन कर दिया grassroots democracy। ये तीन चीजें जब अगर आपने मेंशन कर दी इंट्रो में, तो योर आइडिया आपने शो कर दिया, आपने ऑलरेडी इसका रोल एनालाइज कर दिया यहीं पे, और आपने दोनों को इंक्लूड कर लिया, अर्बन को भी और रूरल को भी और अर्बन को भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर इंट्रो वाज देयर। देन कम्स द रोल,
मतलब रोल आपको बताना है कि क्या है फॉर द गुड गवर्नेंस. सो यू कैन से हाउ दे आर वन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर देम, हाउ दे कैन बी हेल्पफुल. तो जो पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रॉज होते हैं, उनके रोल्स होते हैं, जो फंक्शन है, जो आइडियल फंक्शंस है, वो आप मेंशन कर सकते थे. अब यहाँ पे लिखा तो एनालाइज है, बट आप पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं है, और नेगेटिव है ही नहीं ना. अगर एक तरीके से आप सोचो कि उन्होंने आपको दे दिया कि एनालाइज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, आप उसको नेगेटिव सेंस में जा ही नहीं सकते ना. तो अब लोकल सेल्फ बॉडीज आर गुड गवर्नेंस, उन्होंने खुद ही ये टर्म भी दे रखा है ना. तो यू डोंट गो फॉर द नेगेटिव एस्पेक्ट. और ना ही 15 मार्कर है कि आप ये दो काम ऊपर भी कर सकते हो, दो काम फिर अगेन प्रोस एंड कॉन्स आप यहाँ भी जा रहे हो. तो हियर व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट, आई स्टार्टेड विद दिस वाज माय इंट्रो, एंड आफ्टर दैट in the body the first heading was role of local bodies. ठीक है, then in go and then you can give call it good governance करके लिख सकते हैं. go then at least 5 point should be there, क्योंकि वो मतलब 5 से तो नीचे I won't suggest to go in the one sub part. तो ये करके आप 5 points दे दो कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. that I did, and then comes the second point, that merging rural and urban. अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव का था, बिकॉज अब स्पेस नहीं रह जाता है, तो अगेन आई वेंट क्रॉस and I went with cons. तो I mentioned here only एक साथ, क्योंकि आप pros लिख के 5 लिखो, cons लिख के 5 लिखो, आपको स्पेस जाएगा. और बहुत ही उसमें मैंने यहाँ पे छोटे phrases type, key word phrases जिसको बोल सकते हैं, that I did instead of having a proper detail की first pros है given 5 point, cons है given, वो end हो जाएगा आपका पे. और इसमें होगा कि एटलीस्ट दोनों में you can give 5 points आराम से, स्पेस भी मिलेगा, and then you have a conclusion के लिए भी given space which can be used to answer. तो यहाँ पे भी वही है कि आप pros and cons कर रहे हो, आप एनवे करने की कोशिश कर रहे हो दोनों केस में क्या है. फिर यहाँ पे आप थोड़ा डेफिनेट स्टैंड ले सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आज तो रूरल अर्बन अलग अलग है, तो यू कुड हैव वेंट विद इट कि दोनों को मर्ज करने से. लेकिन इन ऑर्डर, बिकॉज अभी इंडिया में जो रीजनल इम्बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी जो सेपरेट है वो दैट विल बी मोर बेटर इन ऑर्डर टू इंश्योर रीजनल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, एंड टू केटर टू द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो दिस इज समथिंग आई डिड हियर. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है वो यही है कि यार ऑलवेज सी की एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. तो जैसे यहाँ तक एक क्वेश्चन है ये, तो ये मत सोच लो कि इसको कम एड्रेस कर देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा. ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट है. तो ठीक है, इसमें आपको 2 बनाने हैं प्रोज कॉन्स, लेकिन उसके चक्कर में पहले पार्ट की बैंड मत बजाओ. गिव इट इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस एंड देन कम टू द सेकंड पार्ट, एंड देन सी. नाउ अगेन, व्हाई डू आई कीप टेलिंग दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट? शी कुड हैव इजीली डन दैट ना, कि पहले प्रोज लिखे, 2 प्रोज लिख दिए, कॉन्स लिखे, 2 कॉन्स लिख दिए, है ना. बट नो, देयर वाज अ चांस कि ये करके 4 पॉइंट दोनों में हम दे सकते हैं, 5 पॉइंट दोनों में दे सकते हैं. तो 5 पॉइंट इधर, 4 इधर, 4 इधर, मिनिमम 13 पॉइंट्स हो गए 10 मार्कर में. कहां से नंबर कटेंगे? So this is something that we have to understand. So that is why when we talk about means में answer writing, I think मोर देन आंसरिंग अ क्वेश्चन वही 2 चीजें होती हैं. एक हो गया डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, पहली चीज डिमांड ऑफ क्वेश्चन, सेकंड इज योर एड्रेसिंग द सब पार्ट्स. अगर आपने एक भी सब पार्ट को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया है, वेटेज कम दिया है, तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो देखो यूपीएससी चाहती तो जैसे ऊपर उन्होंने करा था कि एक सेटमेंट देके फुल स्टॉप लगा के फिर दूसरा लिखते, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे. लेकिन अब इन्होंने एंड लगा के कंटिन्यूएशन में लिखा है. मोस्ट ऑफ देम वुड हैव स्टार्टेड ओनली विद अर्बन लोकल एंड रूरल बॉडीज के मर्जेंस. और फर्स्ट पार्ट 90% लोग चाहते कि हम इंट्रो में ही बता दें और हो गया, लेट मी गो अहेड विद इट. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हेन यू आर आंसरिंग कि यूपीएससी अब पेपर को थोड़ा ऐसा ना बनाती जाए, लाइक प्रीलिम्स में दे वो प्लेइंग माइंड गेम्स. अभी थोड़ा आई कैन सी, यू विल सी मोर. अभी क्वेश्चंस आप देखो तो वी विल रियलाइज कि इन्होंने ना इधर भी स्टार्ट कर दिया है, मेंस में भी द सेम थिंग. ऑलराइट. So if we go to another question, public charitable trust have potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. अब ये देखो, ये नाम इन्होंने पहली बार यूज करा है. ये एक्चुअल में यही जो उनका एनजीओ का टॉपिक है, एसएचजीस का टॉपिक है, अदर जो आपकी व्हाट वी कॉल देम एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री डिवाइसेस और कुछ तो टर्म दिया जाता है इनको. सो दीज आर द थिंग दैट वी टॉक अबाउट. यहाँ पे हम कुछ ग्रुपिंग्स की बात करते हैं कि आउटसाइड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हाउ डू अदर इंस्टीट्यूशंस मेक इट मोर. तो मैंने जो अब यही होता है कि इन सब पे आप एक सेट टेम्पलेट बना लो कि हाउ एसएचजीस हो गए, एनजीओस हो गए, फिर आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, हाउ आर दिस वर्किंग फॉर मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी. they are making ensuring people's participation and how what are their roles. तो ये मैंने कॉमन टेम्पलेट बनाया था. तो here I use the same thing जो मैंने थोड़ा बहुत प्रेशर ग्रुप के लिए, थोड़ा सा एनजीओस के लिए मोस्टली रखा था कि भाई कुछ पॉइंट जो ओवरलैप कर रहे थे. तो दिस इज व्हाट यू कुड हैव यूज्ड इट. वही बात है कि ये सिंगल टॉपिक है, इस पे आप एक टेम्पलेट बना लो अपना, ठीक है. कुछ स्पेसिफिक्स होंगे, लेकिन एसएचजीस का कुछ स्पेसिफिक है कि भाई इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं. सिमिलरली प्रेशर ग्रुप के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, एनजीओ के कुछ, लेकिन कुछ जनरल फीचर्स हैं जो इनको एज एन एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री डिवाइसेस की तरह ये वर्क कर रहे हैं सबके सब.
सो हियर दे आर आस्किंग कि इनके पास तो है भाई पोटेंशियल कि इंडिया को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए, क्योंकि इनके कुछ पब्लिक इश्यूज हैं जिनको ये हाईलाइट करते हैं कमेंट, क्योंकि ये 15 अब कमेंट का मतलब है मोर और लेस वी गो विद द टोन ऑफ द क्वेश्चन। अगर बोल रहे हैं कि करते हैं तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना है कि करते हैं, और उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दो। यहाँ पे अगर आपके पास कोई रीसेंट एग्जाम्पल हो किसी भी ऐसे एनजीओ का या उसका जिसने या चैरिटेबल ट्रस्ट का दैट हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स पीपल, आप उससे शुरू कर सकते थे। इसमें मेरे पास नहीं था। अभी जैसे एनजीओस का रोल, आई डोंट नो इट वाज एन ऑप्शन, इट वाज हियर, तो आई स्टार्टेड विद दैट कॉमन कॉज फाउंडेशन जिसने स्टार्ट किया था ये ट्रांसजेंडर वाला इश्यूज एंड ऑल एंड हाउ दे वेंट, क्योंकि वो एनजीओ की तरफ से आया था डिमांड, एंड देन दैट कन्वर्टेड इनटू योर पूरा नवतेज सिंह जौहर जजमेंट। यूपीएससी में पूछा था 1 साल पहले। अच्छा हाँ, दैट आल्सो विल शो कि एक जगह और उन्होंने कहीं पूछा है फेडरलिज्म पे क्वेश्चन, एंड लास्ट ईयर ओनली दे मेंशन 101 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, वो जीएसटी पे ही पूछा था उसी तरीके से। तो ये यूपीएससी इज नाउ आल्सो रेप्लिकेटिंग इट बट विद चेंज ऑफ द दिस वर्ड्स, थोड़ा सा इधर-उधर करके। तो हियर यू कुड हैव गिवन अ रीसेंट एग्जांपल, नहीं है तो यू कुड हैव मेंशन कि हाउ दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मोबिलाइजेशन। ये टर्म्स आप ऐसे यूज कर सकते हो, दे आर एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मोबिलाइजेशन व्हिच सिंपली मींस कि outside the ambit of political parties, ठीक है, how are they trying to channelize the people's decisions, people's choices, and they are trying to reflect it in the like जो government schemes आ रही हैं etc. तो ये करके आप बता सकते थे, and then you could have एक्चुअली में ये रोल ही पूछ रहे हैं इनका, देन यू कुड हैव मेंशन्ड हाउ दे आर एक्टिंग एज वॉइस ऑफ द पीपल, हाउ दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, हाउ दे लीड टू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ दे आर गिविंग वॉइस ऑफ द पीपल। एक बहुत सारे मतलब इश्यूज हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते थे, ठीक है, हाउ दे आर एक्टिंग एज मीडिएटर्स, हाउ दे आर एक्टिंग। तो ये 3-4 आई थिंक जो इनके फंक्शंस हैं, एटलीस्ट क्योंकि ये 1 डायमेंशनल क्वेश्चन है, इसमें और दो ज्यादा क्वेश्चंस का सब पार्ट है नहीं, यू कुड हैव एटलीस्ट वेंट विद 8 पॉइंट्स मिनिमम इन योर बॉडी, मिनिमम, ठीक है, यू कुड हैव वेंट विद 8 पॉइंट्स मिनिमम जिसमें आप इनका रोल बता रहे हो, एंड उसका बाद कुछ एग्जांपल्स आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे अगर आप लिख रहे हो दे आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, एग्जांपल लिखो। फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट से एनी जैसे एडीआर है, ठीक है, एडीआर इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो पूरी आई, ये लाइक एनजीओ मतलब इट्स आउटसाइड द पॉलिटिकल ग्रुप, ये एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आप मेंशन कर रहे हो हाउ दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, कुछ मिड डे मील स्कीम्स के लिए किसी ने कुछ रोल प्ले किया होगा, ठीक है, किसी ने मान लो जैसे ट्रांसजेंडर के रोल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, किसी ने लाइक पुअर्स के लिए या दिव्यांग्स के लिए कुछ रोल प्ले किया होगा। हाँ, तो ये सारी चीजें अगर आप लिख रहे हो तो एग्जाम्पल, अब जैसे सेवा हो गया या फिर कॉमन कॉज हो गया, तो आपके पास एक रेलेवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए टू सब्सटैंशिएट एवरी पॉइंट विद एन एग्जाम्पल। आप ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम रखो। अब चैरिटेबल ट्रस्ट आप समझो ना, ये बहुत ही ओवर टर्म है, इसके अंदर आपका एनजीओस भी आ जाएंगे, इसके अंदर आपके कुछ अदर एसोसिएशन सिविल सोसाइटीज भी आ जाएंगी। सो इफ यू आर गिविंग एन एग्जांपल यू कुड हैव गिवन फॉर ऑल ऑफ दैट। तो दिस इज हाउ आई वेंट, ठीक है, एंड इनको आप एंड ही कर सकते थे कि हाउ आइडिया है, या फिर डीपीएसपी से लेकर आओ जो पब्लिक और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन की बात होती है, या फिर आप गवर्नेंस का एस्पेक्ट दे दो जो सिटीजन चार्टर हो गया, या किस तरीके से इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करती है गवर्नमेंट, एंड मोर गवर्नमेंट लेस गवर्नेंस वाला जो टर्म है, ये सब टर्म्स यूज करो अच्छी तरीके से, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट वाला टर्म्स यूज करो, एंड दिस इज हाउ दे आर लाइक मेकिंग इंश्योरिंग दैट मोर एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द डिसीजन मेकिंग टू मेक योर टू मेक द डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट। तो ये एक तरीका था दैट आई थिंक कुड हैव वेंट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि ये सिलेबस का थीम है, फर्स्ट डायरेक्टली और बहुत डायरेक्ट पूछा है कि किस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं इन मेकिंग द डेमोक्रेसी लुक मोर वाइब्रेंट, ठीक है। नाउ सी अगेन हियर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन पॉवर्टी एंड malnutrition, they create a vicious cycle। अब I told कि लास्ट टाइम क्या पूछा है कि poverty is an ये जो भी आपका माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह इज एन एंटीडोट टू, तो ये जो देखो अभी इन्होंने खुद ही दे दिया। अगर मान लो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है, ये आपका इंट्रो ही बन सकता था प्रॉपर। तो स्टार्ट पिकिंग अप कीवर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू आंसर दिस। दिस दे हैव मेंशन्ड कि एक टर्म है पॉवर्टी, एक है malnutrition, दिस इज क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल दैट अफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। What steps can be taken to break this cycle? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, you have to agree with it only because they are directly asking कि किस तरीके से आप इसको ब्रेक करोगे। मतलब इन्होंने आपको चॉइस ही नहीं दिया कि आपको क्या लगता है। No, they gave a definite statement that poverty, malnutrition create vicious cycle affecting human capital formation, ठीक है। Now what steps can be taken that we break the cycle? इसको इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारा तरीका हो सकता था। या तो आप नीति आयोग का वही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते थे। माल न्यूट्रिशन की बात करिए, आप जो हंगर इंडेक्स है यूएनडीपी का वो है ना, उससे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स उससे शुरू कर सकते थे। आप कोई न्यूट्रिशन, या तो सबसे बेस्ट है इको सर्वे ने इस बार बात एक लिखी थी कि इंडिया इज गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी नीड टू कन्वर्ट, वो सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं वहां प्रॉपर कि इंडिया इज गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द स्किलिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ लाइक मेनी एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्टिव डिविडेंड।
तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब बात हो रही है तो यू शुड बी वेरी अवेयर कि आइडिया यहाँ पे ना पॉवर्टी इज नॉट द थीम, मालन्यूट्रिशन इज नॉट द थीम, तो थीम इज ह्यूमन कैपिटल, मतलब इसके लिए ये इश्यूज है। तो जब ह्यूमन कैपिटल आपने आइडेंटिफाई कर लिया थीम है तो आप आराम से शुरू कर सकते थे दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे करके भी आप शुरू कर सकते थे दैट ह्यूमन, अब वहां पे यू आर गिविंग योर टर्म्स कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल हैज बीन इंपैक्टेड। तो अब ये टर्म है आई थिंक डेमोग्राफिक डिविडेंड दे मेंशन, they converted into productive dividend, and here they have mentioned addressing the malnutrition, addressing poverty, Correct. skilling of the youth. तो तीन चार चीजें थी जिसके थ्रू they are trying to convert it into productive dividend. So this is something जो इंट्रो की तरह यहाँ पे काम कर सकता था. I would not suggest to make this or this as your central theme here. Here central theme को आप human capital formation ही रहने दो, ठीक है? Now they're asking what steps can be taken to break this things जो चल रहा है and make the youth or the human capital be available for it. तब आप स्टार्ट करो कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. दिस इज वेयर आई यूज द इको सर्वे से पूरी स्कीम्स जो पॉवर्टी को टैकल करने के लिए ली गई. पॉवर्टी के बहुत एस्पेक्ट्स हैं. अब मालन्यूट्रिशन के तो यू स्टार्ट विद द पीडीएस स्कीम, यू स्टार्ट विद एमजी नरेगा, मतलब किस तरीके से फाइनेंस भी प्रोवाइड करने की बात करें, किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, किस तरीके से दे हैव बीन गोइंग ऑन फॉर न्यूट्रिशनल पॉवर्टी हो गया. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट इवन देयर वाज समथिंग कॉल्ड सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन लेकर आ रहे हैं बिकॉज़ दे टारगेटिंग द हेल्थ ऑफ वुमेन. तो जितनी भी चीजें हैं अब ये हो गया एक सोशल इश्यूज का टॉपिक जिसमें आपको देखना है कि ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमंस को जितने भी इश्यूज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ठीक है, स्किलिंग हो, एवरीथिंग कैन बी ब्रॉट हियर. पॉवर्टी हो, पॉवर्टी से स्किलिंग भी इंपैक्ट हो रही है, पॉवर्टी से न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, तो इसके सारे ही डायमेंशंस यहाँ आ गए. बहुत आराम से आप कम से कम 10 स्कीम्स भी यहाँ लिखते हैं, 10 स्कीम्स, एंड आई विल टेल यू इफ यू हैव डन योर इको सर्वे प्रॉपर्ली आपके पास कम से कम 20 रहेंगे, ठीक है. तो 10 स्कीम्स पे आराम से आप लिखो कि दीज आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन. फिर भी अब इश्यूज आप हाईलाइट कर सकते हो अगर आप चाहो इन सम पार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेटा भी आया था कि स्टिल इतना % ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. दो एक डेटा था नीति आयोग का कि वी हैव पुश्ड आउट आई थिंक 24 करोड़ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, लेकिन उसके अलावा कुछ है अभी 11% ऑफ द पॉपुलेशन समथिंग जो गवर्नमेंट खुद ही डेटा बता रही है. अब वो देखो, जैसे अब हम अगर बात कर ले हंगर इंडेक्स की तो इस पे बहुत डिबेट है. गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि आप 107 रैंक पे हमें रख रहे हो इवन बिलो द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड ऑल. तो ये चीज तो गवर्नमेंट ही आउटराइटली, आई डोंट सजेस्ट कि गो विद दिस. अगर आपके पास और कोई डेटा है, गवर्नमेंट डेटा है, तो उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा होगा ही होगा, तो उसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते थे. एंड कर सकते थे आप इसको एसडीजी से, क्योंकि वी हैव एसडीजी फॉर हंगर, वी हैव एसडीजी फॉर पॉवर्टी, वी हैव, तो इस तरीके से आप कर सकते थे. ये गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स नीड टू बी टेकन दैट विल आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2 जो भी आपका, तो दैट इज समथिंग यू कुड हैव मेंशन्ड. तो ये एक आंसर ऐसा था कि जिसका टोन आप डिसाइड कर सकते थे. आपको पता है कि आपको पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन तो स्टेप्स में एड्रेस करना ही है, तो क्यों ना ह्यूमन कैपिटल को हाईलाइट कर दें हम इन दी इंट्रो. तो इंट्रो में मैंने ह्यूमन कैपिटल को हाईलाइट किया था, स्टेप्स में मैंने सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स लिख दी थी. इन दी एंड आई मेंशन कि भाई these are the steps that have been taken. कुछ हमने वो जो हाईलाइट कर दिया कि इश्यूज जो हैं, तो मैंने दिखा दिया कि भाई अभी इतना भी स्टिल % बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इतना इंडिया में न्यूट्रिशनल पॉवर्टी, इतना % ऑफ पीपल आर लाइक सम इंपॉर्टेंट डिजीज होता है ना कि हिडन हंगर का कंसेप्ट. इसलिए अब वे फॉरवर्ड पे आई आल्सो मेंशन समथिंग स्टेप्स कैन बी टेकन. तो आई मेंशन मिलेट्स आल्सो कि किस तरह से गवर्नमेंट फोकस कर रही है अभी मिलेट्स के प्रोडक्शन पे एंड कंज्यूमिंग मिलेट्स एंड ऑल, क्योंकि दे आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स. तो बहुत सारे स्टेप्स आप हर डायमेंशन पे इसको एड्रेस कर सकते थे. एंड किया मैंने एसडीजी से कि हाउ दीज स्टेप्स कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड कैन हेल्प इंडिया इन अचीविंग दैट एज वेल. सो दिस इज हाउ आई एड्रेस दिस क्वेश्चन. Help me with one thing. जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है what steps can be taken to break the cycle. अब a lot of students get confused किस तरह तो पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि what can be taken है ना. तो हम इसमें किस तरह से लिंक करें. सो जैसे मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स लिखें तो वो स्टेप बताएं कि ये स्टेप ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये लिया है, ऐसे करना है, या जस्ट मेंशन द स्टेप्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन. व्हाट आई डिड आई विल टेल यू एज आई मेंशन कि पहले मैंने बताया कि व्हाट आर, अब आप लिख सकते हो कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने % में हिडन हंगर का कांसेप्ट देखा गया, कितने में स्टंटिंग देखी गई है, कितने में स्टेप्स ओनली ना. हां पहला पार्ट तो अलग हो गया, ठीक है. फर्स्ट वाज द इंट्रो जो मैंने दे दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते थे. जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जिसमें वो स्टंटिंग की बात करते हैं इसकी, तो ये 3-4 चीज स्टंटिंग हो गया आपका, या फिर तो पूरा डेटा, फिर आपका मैटरनल मोर्टेलिटी हो गया, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी हो गया, उस पर डेटा आप थोड़ा सा लिख दो. और पॉवर्टी वगैरह का डेटा मैंने दे दिया. अब ये बोले ये एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स जो मैंने हाईलाइट कर दिए दिस वे. एंड आफ्टर दैट व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू, बिकॉज ये इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. तो आप उसके बाद 2-3 चीजें और पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, बिकॉज
अब what steps can be taken, मैं आपको एक तरीके से they are not expecting you to give the step, they are expecting you to give some credible steps जो exist कर रहे हैं ना, तो क्योंकि वही I said कि अगर वो पूछ रहे हैं what are your views, तो actually they are not asking your views, हाँ, तो वो गवर्नमेंट का ही स्टैंड पूछ रहे हैं. So that is what I did कि पहले मैंने हाईलाइट भी किया, as I mentioned, कुछ स्टेप्स बता दिए, फिर मैंने हाईलाइट कर दिया, अभी भी फिर भी इन स्टेप्स के डिस्पाइट अभी इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें और वे फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, फिर मैंने कुछ वे फॉरवर्ड दे दिया बिकॉज देन एंड देन आई एंडेड इट विद SDGs. समझ, अंडरस्टूड. So this was there. Okay. Next, makes sense for public perception of integrity. Okay. So this is your question of mostly, ये तो हमारा question है of governance. ठीक है. Governance का question है that is asking doctrine of democratic governance makes it necessary that public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive discuss. अब ये क्वेश्चन है आपका गवर्नेंस का, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आल्सो यूज किए एथिक्स इन गवर्नेंस जो आप देखते हो, बिकॉज ये टर्म्स यूज कर रहे हैं लाइक इंटेग्रिटी या यूजिंग टर्म्स, तो GS4 का ऑलरेडी एथिक्स का एक टॉपिक है ना आपका, पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक फाउंडेशन वैल्यूज. हाँ, तो वो चीज मैंने क्या करी है, वहां से भी डेटा उठाया है. अब ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको मोस्टली क्या करना होता है, फिलोसॉफिकल एंगल देख के इफ यू राइट दिस आंसर इट लुक्स मच मोर बेटर. तो मैंने क्या किया कि इफ यू स्टार्ट with the terms like वही आपका like people's participation से या ethical term से, ethical कोई कोड से, तो ये सारी चीजें अगर आप उससे शुरू करो, this makes it look much more like थोड़ा सा टोन जा रहा है ऐसे फिलोसॉफिकल का, पढ़ो भी तो it shows that डॉक्ट्रिन है ये, makes it necessary that public perception of integrity. अच्छा, पब्लिक की ये नहीं, परसेप्शन पे जा रहा है, तो परसेप्शन इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. मेरा परसेप्शन क्या है, ठीक है, ऑफ द इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट बिकम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव. अब ये डिस्कस करना है आपको, तो इस तरीके से हियर इज समथिंग जहां पे आपको थोड़ा सा एथिकल एंगल भी आप दे सकते थे, थोड़े से ऐसे. अब यहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते थे विद स्टेप्स लाइक कैसे ई गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट, हाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन इज, सिटीजन चार्टर को आप यहाँ कोट कर सकते हो, उससे वो तब मॉडल को आप यहाँ कोट कर सकते हो. ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट मेक्स इट मच मोर लाइक आप बात कर रहे हो टेक्निकल टर्म्स पे, बट आप इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एंगल देख के शुरू कर रहे हो, सो दैट विल लुक मेक योर आंसर लुक कि भी कॉम्बिनेशन, और आप एथिक्स में तो पढ़ ही रहे हो ना वो सारी चीजें, तो व्हाई नॉट यूज इट हियर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई डिड. ये इन्होंने टर्म यूज कर लिया पॉलिटी का, सी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस दैट दे हैव यूज्ड, पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटेग्रिटी कमिटी, ये थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं आपका एथिक्स का एंगल, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस के एस्पेक्ट में. ठीक है, हाँ, सो दिस इज व्हाट आई डिड. आई स्टार्टेड इट विद नॉर्मल, आप कोई कोड से शुरू कर सकते हो, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस से शुरू कर सकते हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन पे आप DPSP का भी एंगल चाहते हो आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. आप गांधी जी के किसी कोड से शुरू कर सकते हो, बिकॉज महात्मा गांधी हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन मोर और लेस. ही टॉक्स अबाउट वैल्यूज लाइक इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट, सो यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर. यहाँ पे मैंने सिविल सर्वेंट्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं. इफ आई एम लाइक वी स्टडीड फॉर एथिक्स कि किस लाइक अशोक हिमका सर हैं, ये लोग, इनको आप यहाँ दोगे तो इट्स कंप्लीटली like different something you're doing. अशोक हिमका सर को जो लोग एथिक्स में कोट कर, आई थिंक 99% पीपल आर कोटिंग, तो वहाँ यूनिकनेस नहीं रहेगी. अगर आप इसको यहाँ कोट कर रहे हो तो आई थिंक दैट वुड हैव गिवन अ बिट प्रैक्टिकल आल्सो, कि अच्छा सिर्फ आप बात नहीं कर रहे हो, यू हैव आल्सो गिवन सम गुड एग्जांपल्स ट्राइंग टू शोकेस हाउ इट इज लाइक, वो डिस्कस ही है ना, तो दे आर ट्राइंग टू से इन अ सिंगल मोड, दे लाइक एक सिंगल टोन पे ये क्वेश्चन जा रहा है. इट्स नॉट समथिंग लाइक क्रिटिकली इवैल्यूएट और समथिंग कि आप दोनों चीजें यहाँ पे देख रहे हो. यू कुड हैव गिवन एग्जांपल पूरा ई गवर्नेंस, आपने टेक्नोलॉजी का यूज बता सकते थे, ई गवर्नेंस का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो एग्जिस्ट करता है फॉर सिविल सर्वेंट्स, आप उसकी बात कर सकते थे, कोड ऑफ एथिक्स की बात कर सकते थे. तो जितना एथिक्स में आपने टर्म्स पढ़े थे, इफ यू वुड हैव यूज्ड हियर, डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज यू वुड हैव गॉटन दिस क्वेश्चंस इज व्हाट आई वेरी हेवीली एथिक्स. वो है यार, ये तो मतलब आई रिमेंबर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा था कि कैसे परसेप्शन शेप होता है, और उसमें फिर हम वो पढ़ते हैं परसुएशन पढ़ते हैं, है ना, वो सब चीजें पढ़ते हैं. सोशल परसुएशन तो उसमें की टर्म भी है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जो पढ़ा हुआ है पेपर्स में, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी, ऐसे मत सोच के जाओ कि GS2 का पेपर है. आप जाओ कि आप GS का कोई पेपर लिखने जा रहे हो, जहां जो चीज फिट कर रही है, ट्राई पुटिंग दैट इन. तो ये मुझे लगा थोड़ा, एंड व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, जैसे सिलेबस भी है आपके पास, तो जहां पे आपको गवर्नेंस का एस्पेक्ट है, वहां पे आप लिखो ब्रैकेट में ऑलरेडी एथिक्स, कि जब भी आप पढ़ मैक्स वेबर को आप वहां भी कोट करो, मैक्स वेबर को आप यहाँ भी कोट करो, इट गोज इन द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो दैट इज हाउ आई बेसिकली अप्रोच दिस क्वेश्चंस, सो एज टू मेक श्योर दैट द आंसर लुक्स थोड़ा यूनिक एज वेल. क्योंकि UPSC में क्या हो जाता है ना कि ये अगर आप मोनोटोनस में ले जाओगे तो वही है कि फिर जनरल मार्किंग होती है. तो यू नीड टू हैव, और ये भी नहीं कि कंप्लीट आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी लिख के आ रहे हो, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस अगर हो टॉपिक से, तो आई सजेस्ट इट विड लाइक गो बेटर. परफेक्ट. या दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट. जैसे पहले IR में डायरेक्टली पूछ लेते थे, SCO का बता दो, ब्रिक्स का बता दो, इंडिया चाइना रिलेशन पे बोल दो, तो दे वर लाइक दैट. बट नाउ यू सी दे आर सेइंग द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन.
अब सप्लाई चेन की पहले तो बात कर दी उन्होंने, स्ट्रैटेजिक अलाई टू काउंटर चाइना का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो उन्होंने दो चीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट with examples. So they are talking about supply chain, they are talking about strategic, मतलब कैसे counterpart की तरह India is working, political angle and economic. तो चार चीजें तो उन्होंने खुद दे रखी हैं. You could have given example based on that. Even 4 points पे, हर 4 dimension पे आपने दो examples दिए होते, it would have gone well. 8 dimensions आपने already cover कर लिए हैं. Or you could have like directly mentioned कि how your this entire region of Asia in the present day has become a battlefield, you can say chessboard for the Western politics. Because again we are seeing rising Russia, we are witnessing rising China and rising India. 3 different powers are here which are there. अब इसमें जो alignment कहते हैं, ये यहाँ पे I also used my again PSIR का knowledge to answer, because ऐसे analytical questions हम वहां पढ़ते हैं. यहाँ तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, बट ऐसे आपको होना चाहिए कि थोड़ा सा यू आर ट्राइंग टू गेट थोड़ा सा एनालिटिकल एस्पेक्ट एंड एग्जांपल्स. जैसे सप्लाई चेन की बात होगी तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का एरा है, सब लोगों को सिलिकॉन वगैरह चाहिए, बट उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है. तो उसकी वजह से जो डिपेंडेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है. बट फिर अब किस तरीके से देयर इज अ टर्न टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि भाई इंडिया के पास रिसोर्सेज भी हैं. अब लिथियम रिजर्व्स इंडिया में पाए गए थे इन जम्मू कश्मीर इफ यू रिमेंबर, बट फिर उसके बाद इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट. व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट देम इनटू दैट लिथियम बैटरीज. तो नाउ इफ वेस्ट इज ट्राइंग कि वी हैव रिसोर्सेज, दे गिव अस टेक्नोलॉजी एंड वी वर्क टुगेदर फॉर इट. तो जैसे ICET है विथ USA हमारा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे. सो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन कि कहां, जैसे अब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हो गया, ICET हो गया, आप ये चीजें मेंशन कर सकते थे टू दिस. स्ट्रैटेजिक अलाई की बात कर लो तो आप देख लो कि किस तरीके से क्वाड एक दैट इज अ राइजिंग ग्रुप हियर, क्योंकि to challenge the rise of China in Indo-Pacific, again India is seen as an alternative. बिल्कुल. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हो गए. या फिर आप देख लो कि अगर आप SCO की भी बात कर रहे हो, उसमें भी किस तरीके से इंडिया का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज लुक्ड एट. अब वेस्ट एशिया में देखो I2U2, ISU2 जो ग्रुपिंग्स बन रहे, दे आर ऑल टू काउंटर चाइना का प्रेजेंस एंड क्रिएट अ गुड एक्सेस ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न पार्ट्स देयर. फिर पॉलिटिकल की बात कर लो तो इफ यू हैव सम स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स, मतलब भाई कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप इसकी बात कर सकते हो. या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी G20 में आया, तो व्हेन इंडिया हेडेड इट, लाइक इंडिया हैड द अपना तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का वो इनिशिएटिव ले गए, AU जो अफ्रीकन यूनियन है उसको इंक्लूड किया. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो हम मेंशन कर सकते थे, दैट वुड हैव गिवन एन एंगल कि आप क्या क्या इनिशिएटिव्स देखिए, बिकॉज दे आर आस्किंग एवरी स्टेटमेंट विद एग्जांपल यू हैव टू सब्सटैंशिएट. तो ये 4 डायमेंशंस मैंने पिकअप किए, हर पे जो जो स्टेप्स लिए जा सकते थे दैट आई गेव, या जो अभी करंटली हो चुके हैं एक्सप्लेन दिस. तो आई वेंट विद दैट. ये जितने स्कीम्स मुझे याद आ रहे थे या कोई ग्रुपिंग्स का नाम इफ आई एम रिमेंबरिंग, आई सब्सटैंशिएटेड इट विद दैट. तो ये पढ़ाते टाइम क्या ध्यान रखें भाई फिर इस बार कि IR के जो क्वेश्चंस इतने ट्रिकी हो रहे हैं. नहीं, आई टेल कि ये एक तरीका होता है पढ़ने का. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नाउ इन UPSC मेंस, व्हाइल इवन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, व्हाइल इवन यू आर स्टडिंग, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ कि आज IR का पेपर है तो मैं इतना पढ़ के जाऊंगा एंड इट विल वर्क. जब आप IR पढ़ रहे होते हो, तो अगर आप पढ़ रहे हो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में भी, अगर आप SCRI तो वहीं से शुरू हुआ था ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, तो वो पढ़ तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जो भी ग्रुपिंग्स, आप चाइना के रिस्पेक्ट में उसको पढ़ भी नहीं रहे हो, बट वो कंटेक्स्ट में तो उसी के आया था ना. तो you need to start blurring that lines and make sure कि आप कोई भी डेटा आप कहाँ यूज कर पा रहे हो मोर और लेस. अब इंडो पैसिफिक यहाँ नहीं मेंशन्ड है, बट यहाँ पे आप पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए इंडो पैसिफिक को ही यूज कर सकते थे डायरेक्टली. तो यू नीड टू हैव दैट थिंग इन माइंड व्हाइल यू आर रिवाइजिंग थिंग्स फॉर योर मीन्स, कि आप किस तरीके से क्रॉस पेपर लिंकेजेस, क्रॉस लाइक टॉपिक लिंकेजेस क्रिएट कर सकते हो टू मेक योर आंसर लुक मोर वाइब्रेंट हियर. सो दिस वाज फॉर दिस पार्ट. This was a very straightforward question. अगर आप देखो तो 4 सब पार्ट्स दिए थे, हर पे 2-2 स्कीम्स भी अगर आप लिखते तो it would have went. Now critically analyze. Now when they talk about critically analyze India's role, India's evolving diplomatic, again they have mentioned 3 keywords: diplomatic, economic, strategic relations with Central Asian Republic, highlighting their increasing significance in global geopolitics. अच्छा, there is SCO जहां पे हम Central Asian Republics की ग्रुपिंग देखते हैं, where India is also a member, China is also a member. अभी रिसेंट में क्या हो गया हमारा, आई थिंक पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर. हियर वी सी देन अभी रिसेंटली में ईरान का एंगल भी आ गया है, रशिया भी है, जो कि एक मेजर इशू हो गया कि इनका एक अपना अगर एक्सेस डेवलप हो रहा है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, बट इंडिया कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ इट. Why? Because ये रीजन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होल्ड कर रहा है. चाहे इफ इंडिया नीड्स एक्सेस टू द वेस्ट, चाहे इफ इंडिया नीड्स एक्सेस टू द यूरोप, दे नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. सो आई अंडरस्टूड कि ये आया क्यों था क्वेश्चन. इट वाज बेसिकली इन रोल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ईरान इन SCO, because Iran was included in SCO, so there was a question ki how this access can be created and can create a problem for India and its relation with the other Central Asian republics. तो मैंने शुरू ही इससे किया
recently, I don't know if that fits well, but I started with this only. कि recently Iran was included in SPO, ठीक है, creating a strategic challenge for India and its relationship with the Central Asian Republic, because it is known that India and Iran are not very good allies, ठीक है, and also इनका influence ज्यादा रहता है चाइना के साथ, इनका influence हमेशा anti west रहा है ईरान का, so you can mention. तो I started my intro with this, and then I started critically analyze है, तो आपको positive negatives हर तरफ से जान, मतलब you have to go analyzing that way, and since it's a 10 marker question, इन्होंने 3 terms दिए हुए हैं, diplomatic पे आपको 2 points लिखने हैं, इकोनॉमी पे आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस पे आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, एंड देन यू कैन आल्सो मेंशन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट कि किस तरीके से ग्रोइंग सिग्निफिकेंस और ग्रोइंग दिस ग्रुपिज्म दैट इज गोइंग ऑन ऑन द डिफरेंट एक्सेस दैट इज कमिंग अप, जिसकी वजह से इंडिया का जो रोल है वहां पे दैट इज डिमिनिशिंग एंड दैट कैन बी इंपैक्टेड इन द कमिंग फ्यूचर. सो दिस इज मतलब एक तरीका था टू अप्रोच इट. ओके, हाँ, इंक्रीजिंग सेफ्टी. तो यही था थोड़ा कि आप बता सकते, जैसे अगर वेस्ट एशिया पे भी अगर ये क्वेश्चन होता तो आप एक तरीके से बताते कि वेस्ट एशिया का सिग्निफिकेंस क्या है. सिमिलरली इनका सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर आल्सो रिच इन ऑयल, दे आर आल्सो रिच इन रिसोर्सेज, ठीक है, दे आर यहाँ पे. और दूसरा दे प्रोवाइड अ पैसेज फॉर इंडिया टू हैव अ कनेक्शन विद द सेंट्रल, मतलब वो यूरोप हो गया या वेस्ट की तरफ. पूछ लिया ना इस बार इन लोगों ने कि इंडिया से जब हमें लेके जाना है वो पूरा कॉरिडोर एंड ऑल INSTC, और हम अगर रशिया तक जा रहे हैं और अगर यूरोप तक जा रहे हैं तो बीच में से किससे होके जाएंगे. अच्छा, ओके, बिल्कुल पूछ लिया. तो एक में दे रखा था ईरान, एक में दे रखा था अजरबैजान. हाँ, तो ये अच्छा, ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि नया इन लोगों ने स्टार्ट करा है कि द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन मेंस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ द थीम्स. डेमोग्राफिक डिविडेंड आल्सो वी सॉ दे आस्क्ड इन द प्रीलिम्स वो कौन सी कंट्रीज है जिसमें, तो डेमोग्राफिक विंटर पे क्वेश्चन दे आस्क्ड. तो ये थोड़ा सा चल रहा है यहाँ पे. इससे आपको ये पता चलता है कि आप ना ऐसे इंडिया और कजाकिस्तान रिलेशन मत पढ़ो, इंडिया और ईरान रिलेशन मत पढ़ो, आप इंडिया एंड वेस्ट एशिया पढ़ो, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया पढ़ो. तो मोर और लेस उस कंट्री, वो जो एरिया है उसका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, डिप्लोमैटिक सिग्निफिकेंस है, मोर और लेस द सेम, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू कैन रेप्लिकेट इट. तो ये आपका टास्क भी थोड़ा कम करता है. दिस आइडिया आई गॉट क्योंकि हमारा जो PSIR का सिलेबस है, इट इज नेवर लाइक दैट. इट इज लाइक इंडिया एंड बिगर पावर्स, इंडिया एंड वेस्ट एशिया, इंडिया एंड अफ्रीका. तो पर्टिकुलरली की कंट्री के साथ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो मोर और लेस द चैलेंज इज सेम. एक्चुअली देखो तो GS2 के सिलेबस में भी ऐसे ही लिखा है हमारे में भी, UPSC में भी, है ना, इंडिया एंड नेबरिंग एंड फिर इंडिया एंड अदर एरियाज ऐसे करके लिखा है. तो वो पूरे एरियाज का ही दे रखा है. तो वो जैसे हम कंट्री वाइज पढ़ने लग जाते हैं, आई थिंक दैट इज. और आजकल आई आल्सो सी कि जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट में किया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, इंडिया एंड रशिया की हिस्ट्री. आई थिंक नथिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको बस हिस्ट्री पता होना चाहिए था कि किस तरीके से क्या हमारा कितना पुराना क्या है, बिकॉज ये डायरेक्टली बहुत ही करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन ट्राइंग टू लाइक यू नो क्रिएट समथिंग दैट खैर वक्त चला गया. व्हेन यू टू टेक एन एंटायर कोर्स और IR. हाँ, वो IR तो मैंने सबसे ज्यादा मुझे यही लगा कि आई वाज बिजी रीडिंग कैसे कि पहले सबसे पहले ये ट्रीटी हुई, फिर वो ट्रीटी, दे नॉट इवन आस्किंग दैट. इनिशियल में तो करते हैं ये वाली गलती. हाँ, जब तक अगर कुछ रिवाइज नहीं, जैसे आप इंडस वाटर ट्रीटी, इट्स अ न्यूज, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ के आओ, ठीक है, बिकॉज ये कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या उसकी वो चीजें, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट देयर, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो टेल स्टूडेंट्स की जो आजकल एडिटोरियल पढ़ने का क्रेज है ना, जब न्यूज़पेपर हम पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट विद एडिटोरियल्स. एडिटोरियल्स मैंने देखे हैं 2 ही टाइप के होते हैं, या तो बहुत पॉलिटिकल होंगे या तो बहुत एनालिटिकल होंगे, IR के आर्टिकल्स होंगे वो. तो पॉलिटिकल जरूरत है नहीं, और IR अंटिल अनलेस यू आर नॉट अ PSIR स्टूडेंट, आपके लिए वो सच्ची में रिक्वायर्ड नहीं है. हाँ, तो आई डोंट थिंक यू शुड बी वेस्टिंग टाइम एंड पिकिंग. मुझे आई थिंक एडिटोरियल्स टेक योर 40 मिनट्स का टाइम. बहुत वक्त लेता है यार. हाँ, ये तो ओनली से कि भाई इंटरव्यू आ जाएगा तब पढ़ना, एडिटोरियल्स उससे पहले बिल्कुल नहीं. आई थॉट दैट आई विल बी गेटिंग सो मच हेट फॉर सेइंग दिस, एडिटोरियल मत पढ़ो, बट आई टोल्ड देम टू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा एडिटोरियल, क्योंकि एक तो इनमें कोई ऐसे बैलेंस्ड और गवर्नमेंट के व्यूज नहीं होते हैं, वो किसी इंसान के पर्सनल व्यूज हैं टू गो अबाउट इट, तो आप उसको कोट भी नहीं कर सकते हो. वो यूज इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे आप. वो एक एडिटोरियल बहुत ही छोटी चीज पे आ जाएगा, वो क्वेश्चन आएगा नहीं. तो सर इतना तो मिल जाएगा आपको जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो. I see that there are people highlighting कि this is the article of the Hindu this date. अगर आपको CAR के साथ रिलेशन पता होता है ना, तो आप इसको कर ले जाते हैं. आपको वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ने की उसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. Is what I basically personally think. तो इवन लाइक दिक्कत क्या, फ्रेशर सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पर टाइम वेस्ट करता है. हमने भी किया, लेजिट नोट्स बनाए हैं बैठ के. इन द फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स वी डू, फिर रियलाइज होता है कि ना तो नोट्स बनेंगे ना वो कभी रिवाइज हो पाएंगे, वो ऐसे ही पड़े रखे हुए हैं, जस्ट वन टाइम थिंग. सो यू नीड टू स्टार्ट लाइक बीइंग मोर थोड़ा यू नो. और जिस तरीके का पेपर अब बन रहा है, इट इज गॉन अ लॉट मोर फार अवे फ्रॉम बीइंग अ कन्वेंशनल थिंग. बहुत ही ज्यादा दे हैव ट्विस्टेड इट एंड टर्न्ड इट. तो आई डोंट सजेस्ट गोइंग फॉर दैट. नाउ अगेन दिस क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, सीधे सीधे. देयर इज नो सेकंड थिंग जिसका इंट्रो कुछ और हो सकता था.
पेपर लीक केसेस थे, बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहे थे, जिसकी वजह से दिस हैज बीन ब्रॉट. सो व्हाट वी डिड वाज, व्हाट आर द, अभी इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसेंटली पास्ड एज वेल एज एनफोर्स्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट. Now, whether university or state education board examination too are covered under this act or not. Now, if you talk about this thing, इंट्रो आराम से आप करंट अफेयर्स से लिख सकते थे, where you could have mentioned कि recently because of the paper leaks cases and बहुत ज्यादा issues जो चल रहे थे, जिसकी वजह से government has come up with this act. First thing, then you could have started with the positives और इसके जो अब aims and objectives हैं. Now there is also a question among people कि अब हम क्या सारे acts पढ़ें, ठीक है, दे आस्क कि हम कितने एक्ट्स पढ़ने हैं. भाई न्यूज में आप कोई भी कंपाइलेशन उठाओ, कम से कम 25-30 एक्ट्स तो वो दिए ही रहेंगे. तो अब आता है कि हाउ डू यू पिक अप एंड चूज थिंग्स. जैसे अगर सीईसी पे एक्ट है, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन, उसका रोल, सीईसी का अपॉइंटमेंट, एनजेएसी एक्ट अगर न्यूज में है, तो फॉर एनी मींस भाई ये चीजें हैं जो डिबेटेड है क्वाइट अ लॉन्ग टाइम से, बिकॉज दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनके ऊपर यू नीड टू बेसिकली टॉक, that you need to talk about. तो ये इस पे अगर देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे कोई आर्टिकल है कि उनमें कोई चेंजेस या कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट जाती हैं. बट व्हाई वाज दिस वेरी इंपॉर्टेंट? Because it is a serious administrative reform. ठीक है, it is a serious administrative reform because lots of paper leakages happening. अब paper leaks की वजह से बहुत से issues हो रहे हैं. They are not just administrative issues. They are also like भाई people who are preparing for so many years, and then comes the so much of backlash from the student community as well. Then we have seen कि भाई एक I think बिहार में they opened up vacancy for some teacher का वो, and वो train चल नहीं पाई because people were in the train, they were on the train just because 49,000 or 50,000 की vacancies आई है, because exams हो ही नहीं रहे ना, पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो कैंसिल हो जा रहे हैं, पीपल आर लाइक लूजिंग लाइफ एज अ स्टैम्पीड इज हैपनिंग ऑन एग्जामिनेशन थिंग्स. भाई तो ये चीजें को करना इंपॉर्टेंट था. तो ये एक्ट और ये न्यूज में एक्ट था बिकॉज नॉट जस्ट वन पेपर, आई थिंक देवर लीकेज ऑफ, देवर इन नीट का पेपर लीकेज का इशू था, सम स्टेट पीएससी का पेपर का लीकेज का इशू था. सो देवर एटलीस्ट 2-3 already instances in the news, that's why it was there. तो definitely ये article तो पढ़ के जाना था. ये जो second part उन्होंने पूछा है, that is one of the specific provision of the act itself, कि भाई it is applying for the all the national, NTA जितने एग्जाम्स कराती है, national वो उनके लिए था, ठीक है, because कुछ state based हैं, state education boards हैं, वो अपना अलग से पेपर सेट करता है, उसमें सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं होता, because we follow the federal model. तो वहां पे ये नहीं जाएगा. So ये एक तरीके से they have just asked one specific point, इस पे गवर्नमेंट ने बात करी है and directly they have given directives की क्यों ऐसा है, ठीक है. तो जब आपने कोई भी कंपाइलेशन पढ़ा होता, अगर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होता, आपने स्पेसिफिक एक्ट भी पढ़ा होता, तो ये सारे प्रोविजंस वहां बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए थे. दिस वाज अ वेरी एकेडमिक क्वेश्चन. यहाँ पे उन्होंने आपको एनालाइज करने को कुछ चीज नहीं दी है, दे जस्ट आस्क्ड कि मेंशन करो क्या क्या है और फिर ये बताओ ये है या नहीं है, और नहीं है तो यू कुड हैव गिवन एन आंसर. नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. आप सिर्फ ये बता के नहीं छोड़ सकते हो कि नहीं कवर्ड है या कवर्ड है. इट्स अ 15 मार्कर. ये सेकंड सब पार्ट ही है आपके क्वेश्चन का, तो यू हैव टू गिव पॉइंट्स कि भाई क्यों नहीं कवर करे हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव आंसर्ड इट इन दैट वे. दिस वाज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन टू बी टेकन केयर ऑफ. तो आई थिंक वो इस तरीके से हो भी जाता. नाउ सी, राइट टू प्रिवेसी. आई ऑलवेज से कि भाई पॉलिटी में एक चीज मैंने नोटिस करी, मेरा खुद का है, एक ईयर आर्टिकल 19 पूछेंगे, दूसरे ईयर आर्टिकल 21 पूछेंगे विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन 15 मार्कर. 19 में बहुत वेरिएशंस हैं, जैसे आपके पास हमारे पास स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं. तो हियर वी आल्सो हैव थिंग्स लाइक हेट स्पीच हो गया आपका, फेक न्यूज हो गया आपका, ठीक है, सेडिशन हो गया, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस ओनली, राइट. तो इनमें से आपके कोई ना कोई एक उठा के उन्होंने 19 का पूछ देना है, और 21 आर्टिकल पे वो एक्सपैंड करने को आपको पूछेंगे, या वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूछेंगे, क्योंकि यही 3 ऐसे हैं जिनमें यू कैन सजेस्ट मल्टीपल केसेस. फिर या देन दे शिफ्ट टू अनदर टाइप ऑफ थिंग, दैट इज सेंटर पे वो शिफ्ट करेंगे, तो दे विल फोकस ऑन गवर्नर, they will focus on speaker, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ अच्छे खासे केसेस मिल जाएंगे. then comes the third thing, they go for judiciary. फिर जुडिशरी के ऊपर जितने भी आपके केसेस हुए हैं, they will be addressed there. तो आई थिंक ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फॉर विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड. आप आर्टिकल देखो, रिजर्वेशन पे there are very less chances कि वो पूरे केसेस आपसे पूछे. रिजर्वेशन पे आई डोंट थिंक दे टॉक अबाउट दैट वे. वो एफर्मेटिव एक्शन करके लास्ट ईयर पूछा था, बट इट वाज अ टोटली डिफरेंट टोन. दे डिड नॉट गो विद द वे कि आप एन्यूमरेट करो जजमेंट्स, एन्यूमरेट करो केसेस. दे डिड नॉट टॉक अबाउट इट. यहाँ पे वो डायरेक्टली केसेस की ही बात कर रहे हैं. सो एज आई मेंशन, सी हियर इट वाज आर्टिकल 21 दिस ईयर. दे व्हाट आर दे मेंशनिंग? राइट टू प्राइवेसी,
बट सी पहले होता था कि ओवर आर्किंग क्वेश्चंस होते थे, हाँ. तो आर्टिकल 21 आया तो मुझे पता है मुझे शुरू कहाँ हाँ, से करना हाँ, है. आई टॉक अबाउट फूड, आई टॉक अबाउट राइट टू हाँ, स्लीप, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू जॉब, राइट ऑफ prostitutes children, right of divyang, Minority, everything, privacy and all of that can be included. But now they have specifically first sticked to privacy, and then you see what they did. Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty, matlab article 21. Now they are saying and is inherently protected under by article 21 of the explain. तो इन्होंने पहले तो चीज एक सपाट ये हो गया कि आप बताओ कि कैसे राइट टू प्राइवेसी. अब ये भाई केशवनंद भाई वो पुट्टा स्वामी जजमेंट जो है वहां तक आपको आना था पूरा इवोल्यूशन के फॉर्म में. 3-4 केसेस जो आपको याद आ रहे हैं. And this reference discuss the law relating to DNA testing of child in womb to establish its paternity. Now, इस पे मुझे तो कोई केस नहीं आता था, to be very honest. स्पेसिफिक केस नहीं आता. मुझे थोड़ा बहुत याद भी आ रहा था, तो सेल्वी जजमेंट याद आ रहा है जहाँ नार्को टेस्ट को लेकर उन्होंने बात करी है, बिकॉज द पर्सन इज नॉट इन कॉन्शियसनेस, तो वो कुछ भी बोल रहा है, तो दैट्स अगेंस्ट देयर राइट टू प्राइवेसी, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. बट यहाँ पे मुझे नहीं पता था कोई स्पेसिफिक केस, एंड दे हैव मेंशन्ड दैट लॉ relating to this and this for paternity testing. अब यहाँ पे मैंने बात कर ली थी थोड़ा. I'll tell what how I approached it. पहले तो right to privacy से I explain, I went with ahead with it. ये dimension क्योंकि address करना था, मेरे पास specific case law नहीं था. We study about the medical termination of pregnancy वाले में कि there is a right to life, मतलब वो right to choice and right to life. तो life वाला जो angle आ जाता है fetus का कि abortion में भी government, तो मैंने उसके थ्रू इसको थोड़ा justify करने को कि उसके rights हैं. और वही न्यूज़ में भी था ना. हाँ, मैं term तो मैंने उसी के थ्रू justify किया था कि उसके rights हैं. That is why even testing without मतलब उनके conscious डिसीजन से it can be a to the privacy of the child or the fetus. but मेरे पास specific case नहीं था इसके लिए. तो now you see क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो ये मुझे भी नहीं आता था, and I don't think किसी भी जिससे भी मैंने डिस्कस किया था किसी के पास एक specific judgment नहीं था इससे रिलेटेड. अगर कोई है, if you know, अब तो पता होना चाहिए क्योंकि आप पूछ दिया है. तो अगर अब कभी राइट टू प्राइवेसी का एक एंगल आता है, आप ये डायमेंशन वहां इंक्लूड कर सकते हो एज अ like DNA testing of child in the womb to ये वाला चीज मेरे पास नहीं था. तो I went with article 21 and privacy वाला एंगल लेके मैंने वो पूरा जितने भी privacy के dimensions उन्होंने टच अपॉन किए हैं, from the technological में भी IT एक्ट वाला भी जो इंक्लूड किया था, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड करते करते I went here and थोड़ा सा then I gave one dimension to it because मेरे पास कंटेंट नहीं था इस पे, so couldn't go मतलब ऐसे पूरा. Again everybody has to understand this that ऐसे questions में content होना बहुत मुश्किल है आपके पास. तो please make sure, हाँ प्लीज मेक श्योर कि आप एड्रेस करो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी बाय द नॉलेज दैट यू हैव. है ना भाई, एक ही जनरली यहाँ पे लॉ ही पूछा है ना. हाँ, तो आप कुछ और लिख भी नहीं सकते कि आप कुछ और डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो. आपको वो लॉ डायरेक्टली उसमें मेंशन किया, मुझे लॉ जानना है, आप बताओ. आपको नहीं पता, यू कैन नॉट फेक थिंग्स, यू नीड टू जस्ट गिव अ डेफिनेट थोड़ा सा डेफिनेशन दो और उसको छोड़ो. डोंट वेस्ट मच टाइम. एंड दिस वाज एज आई टोल्ड कि ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12. तो यहाँ पे इफ आई वुड हैव स्टक तो मुझे पता था कि मैं प्रोसीड नहीं कर पाती. आई लेफ्ट इट, आई अटेंडेड इट एट लास्ट. तो जितने भी मुझे एक्ट्स याद आ गए थे, आई वेंट अहेड विद दैट. Now, what changes the union government recently introduced in domain of center-state relation? ठीक है, recent कुछ तो करा होगा ना, तभी they have come up with this. Suggest measures to be adopted to build the trust between center and state for strengthening federalism. तो ये question federalism का है, ठीक है. और कोई रीसेंट जितनी भी अब स्टेप्स, रीसेंट का मतलब ये नहीं कि इसी साल जो लिया है, अभी जो रीसेंट टाइम्स में उन्होंने कुछ जजमेंट दिए हो, अभी लास्ट ईयर ही उन्होंने डायरेक्टली पूछा था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके पूछ दिया था, एंड इट वाज ऑन योर जीएसटी काउंसिल, जिसमें वो फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं. तो यू कुड हैव अभी पिछले 10 साल में जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, तो ये एक आंसर ऐसा था जिसको या तो आप एसआर बोमई केस से मैनेज, अब देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आप शुरू कर सकते थे, मैंने बोमई केस से शुरू किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा उसके बाद एक्शन 15 मार्कर आप लिख सकते थे कि इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग कॉम्पिटिटिव टू कन्फ्रंटेशनल टू मोर ऑफ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ये 3 टर्म्स जब आप मेंशन करते हो कि आप इवोल्यूशन भी बता रहे हो, कैसे इनिशियली कॉम्पिटिटिव था, फिर थोड़ा कन्फ्रंटेशनल भी हुआ कि कुछ स्टेट्स डायरेक्टली कन्फ्रंट करें, एंड नाउ इट इज नाउ मूविंग और शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो इससे ये दिखेगा कि अच्छा रिसेंट टाइम में कुछ तो चेंजेस हुए हैं जिससे वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड कोऑपरेटिव थिंग. तो अब यहाँ पे आप नीति आयोग का एग्जांपल दो, ठीक है, जहां पे वी हैव दैट काउंसिल सब है, आप जीएसटी काउंसिल का एग्जांपल दो, जितने भी रिसेंट में चेंजेस हुए हैं जहां स्टेट्स को भी पार्टिसिपेशन स्टेक मिला है, ऑल ऑफ दैट. नाउ इट इज अ वन डायमेंशनल क्वेश्चन अगेन, एंड यू शुड हैव एट लीस्ट 10 एग्जांपल्स ऑफ ऑल द रिसेंट हैपनिंग्स दैट आर देयर. इसके अलावा कोई वे ही नहीं है इसको आंसर करने का. इफ यू डोंट हैव एग्जांपल्स, योर आंसर्स विल नॉट बी सब्सटैंशिएटेड. ठीक है, यहाँ पे आप सोचो कि सेंटर स्टेट रिलेशन वाले आर्टिकल उठा के मैं लिखने लग जाऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल, नहीं,
यू नीड टू गो, हाँ वो आप टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल डोमेन में, जैसे जीएसटी फाइनेंशियल डोमेन में आ गया, वहां पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सो दैट इज हाउ यू कुड हैव प्रोसीडेड विद इट इन ऑर्डर, दीज आर द क्वेश्चंस जहां पे यू नीड टू हैव एक्चुअल नॉलेज, और मुझे नहीं लग रहा है यू कैन ब्लफ हियर एंड गेट मार्क्स, ठीक है, तो यू कुड हैव, एंड फेडरलिज्म एक ऐसा टॉपिक है एज आई मेंशन जो रहेगा, और वो गवर्नर का देख लो आप, ठीक है, गवर्नर का इशू देखो, फेडरलिज्म के अंदर ही आता है आपका, ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट, ऑल द एंगल्स कुड हैव बीन गिवन इन ऑर्डर टू लाइक, एंड देन दे आर आस्किंग यू सजेस्ट मेजर्स, मतलब ये वे फॉरवर्ड का एक चीज दे आर डिमांडिंग कि व्हाट कैन बी डन। अब आप देख लो, लॉ कमीशन ने अगर कुछ सजेस्ट किया हो, सेकंड आरसी ने कुछ सजेस्ट किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कुछ सजेस्ट किया हो फॉर से गवर्नर में ही, कि सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये वो, तो ये चीज आप बताओ कि ये सजेशंस हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग यू वे फॉरवर्ड, दैट्स व्हाई फिक्स दैट टाइमलाइन होना चाहिए टू रिप्लाई एंड ऑल ऑफ दैट, तो यू हैव दिस वे फॉरवर्ड्स। तो पॉलिटी में एक चीज है कि वे फॉरवर्ड आपके कमिटी से आनी चाहिए, वे फॉरवर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आनी चाहिए, वे फॉरवर्ड शुड कम फ्रॉम सर्टेन वेरी रिलायबल सोर्स, आप खुद से नहीं ले सकते कि हम चलो ये कर लेते हैं, you need to have that strong backing for your answers, so that is what I did here. It was a federalism ka question, started with Supreme Court judgment, and then I went ahead with like writing all the changes jo hue hain recent time mein, then way forward mein I mentioned some of the judge jo law commission, second ARC, Supreme Court jaise tha that I mentioned as a, so you could have, then again I ended इसका on a very balanced note कि Granville Austin has called that India is a quasi federal structure, तो थोड़ा सा changes रहते हैं, but at the same time government is taking several steps in order to have a balanced relationship between the center and the state. Understood. Now growth of PILs in India, all right, as a result has an Indian Supreme Court, okay, now see this is a question that is like more or less ऐसे predictable वाले होते हैं, because अभी recent time में हुआ है कि Supreme Court ने बहुत सारे domains में, जिसको हम लोग बोलते हैं judicial activism, उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब questions रहते हैं, and also जब Supreme Court ने NGSC को struck down किया था तो government की तरफ से उसका criticism भी आया था, so there are issues जो कि रहेंगे news में, बहुत ही current था, कोई recent PIL आपको याद है आप शुरू कर सकते थे, या फिर I don't remember the name of the judgment जिसमें your PN Bhagwati has talked about the, or he is the pioneer or stalwart of that, so you could have started with him, his name also, because he is known for that, ये कोई political angle नहीं है, you could have started with that, then you come for the reason for growth, इन्होंने पहले तो पूछा हुआ है what is the reason, then they are asking आपको क्या लगता है कि has it emerged as a most powerful judiciary, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, based on the constitution all the three organs of the जो government है हमारे, judiciary, executive, legislature, they are at the same thing, same point, ठीक है, लेकिन why is Indian judiciary is considered to be more इतना, because it is an independent judiciary, हमने वो follow किया है, and integrated as well as independent का हमने उनको tag दिया हुआ है, अगर हम unitary और federal models पढ़ते हैं वहां हमें ये पता चलता है, so from there you could have quoted it. Now you talk about why is the reason, for example there is legislative vacuum in certain areas जहां पे जरूरी होता है Supreme Court का intervention. Now you can talk about everything, चाहे वो आप पॉश की बात कर लो, विशाखा जजमेंट्स आया and that led to, चाहे आप नवतेज सिंह जौहर की बात कर लो, सिमिलरली जब ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि इंडियन जुडिशरी हैज इमर्ज्ड, तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते थे सेम सेक्स मैरिज का ना, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि हम नहीं इस पे कुछ बोलने वाले, लेट द लेजिस्लेचर कम विद द लॉ एंड देन आई विल रिटेलिएट ऑन दैट, इससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज स्टेइंग इन इट्स बाउंड्री, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओवरस्टेपिंग इट, जिसको एक नेगेटिव टोन देने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में, जस्ट टू सी हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, स्टे ऑन द पॉजिटिव टोन, ट्राई एंड शो कि आप इक्वली तीनों बॉडीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट अ लेजिस्लेचर का एम्बेसडर कि आपको शो करना है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट ओवरस्टेप कर अपनी बाउंड्री को, यू नीड टू मेंटेन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी द राइट्स ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ से बात करो, चाहे वो आई थिंक देयर वाज वन जजमेंट, गौरव जैन जजमेंट, जहां पे ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट्स के जो बच्चे हैं उनके राइट्स की बात की गई है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट स्टेप, फिर यू सी आर्टिकल 21 का जो एनहांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अनुराधा भसीन केस हो या कुछ भी केएस पुट्टास्वामी जजमेंट हो, ऑल ऑफ दैट इज इन्वेंशन ऑफ द जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो आप इसको भी मेंशन कर सकते थे आराम से बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये एक क्रिएटिव जुरिस्डिक्शन का एग्जांपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, क्यों ये काम हो रहा है, बिकॉज देयर आर वैक्यूम्स इन द इंटरेस्ट जहां पे गवर्नमेंट के लॉज नहीं है, तो दैट इज व्हाई, तो ये एक तो रीजंस पूछ रहे थे तो आप मेंशन करते जाओ, लेजिस्लेटिव वैक्यूम, फॉर एग्जांपल विशाखा जजमेंट, देन यू टॉक अबाउट देयर इज डिमांड फ्रॉम द पीपल, फिर आप देख लो नवतेज सिंह जौहर केस जो कॉमन कॉज फाउंडेशन की तरफ से, तो इस तरीके से आप लिस्ट दे सकते हो पूरे एटलीस्ट 5-6 केसेस की जहां पे सुप्रीम कोर्ट हैज डन, देन दे आर आस्किंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडियन जुडिशरी इमर्ज्ड, यू से कि भाई इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द
आर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, बाई कॉन्स्टिट्यूशन में वन ऑफ द आर्म है हमारा, एंड इट हैज लाइक नॉट इट हैज उसमें ये वाला एग्जांपल से मैंने स्टार्ट करा कि भाई इन्होंने खुद ही बोला, तो इट्स नॉट लाइक दे आर ओवरस्टेपिंग, इट्स नॉट अ केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, दे आर नॉट ओवरस्टेपिंग, दे आर इन देयर डोमेन. Yes, it is considered to be one of the most powerful judiciary. Why? Because they have something called as judicial review ka power that is derived from Article 13. So they don't go, even if the parliament is making law, they have right. Then here I give the example also of the basic structure doctrine or the Keshanand Bharti case, which makes Indian judiciary as one of the most powerful judiciary, because basic structure doctrine is not defined. वो डिफाइन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट गोस फॉर भाई उनको जो लगा कि ये होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर, तो देखो, तो वो एक इंटरप्रिटेशन पे चल रहा है. सो ऑल ऑफ दैट आई हैव यूज्ड हियर टू जस्टिफाई माय आंसर्स कि हाँ पावरफुल है, बट इन द पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस. तो नॉट गिविंग द एंगल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, रादर गिविंग इट एन एंगल ऑफ मोर ऑफ लाइक अपना फिलोसफिकल. ये बहुत मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोटिस हियर कि वो ट्रैप कर रहा है आपको कि एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द जुडिशरी, हैज द सुप्रीम कोर्ट इमर्ज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी. एक तो सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ही क्यों सिर्फ, एंड इट शुड बी एंटायर जुडिशरी. दूसरी बात जुडिशरी क्यों, अरे ये पावर भी तो कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहा है ना. तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आप जाओ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो सब कुछ दे रहा है. ऐसे नहीं कि जुडिशरी ने खुद से हाँ अपने आप को पावरफुल कर लिया है, केवल से पार्लियामेंट नहीं. सो आर्टिकल 142 आप बताओ कहां से, आर्टिकल आई थिंक 126 है, और कौन सा आर्टिकल है फॉर स्पेशल लीव पिटिशन, इफ आई थिंक आर्टिकल 126 आई एम नॉट रिमेंबरिंग, मे बी कुछ है स्पेशल लीव पिटिशन का भी है. फिर जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से वो जो डिराइव, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स पे ही इट इज वर्किंग एंड इट इज ट्राइंग टू फिल इन द वैक्यूम दैट एग्जिस्ट. तो ये था जिसके ट्रैप में नहीं फंसना है. हाँ, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई आप किसी के एम्बेसडर नहीं हो, सिंगल एक किसी ब्रांड और किसी ऑर्गन ऑफ द. हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर आप, जैसे आप वी हैड दैट थिंग फॉर एथिक्स आल्सो कि कोई भी हम कर रहे हैं तो एक ये बनाओ, ठीक है, और ऐसे स्टार्ट करो, पर्सनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, दिस एंड नेशनल इंटरेस्ट. तो एनी ऑफ माय डिसीजन विल बी गाइड. अब आपको एथिक्स में केस स्टडीज मिलती हैं जहां पे वो आपको बोलेंगे कि विच आर द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन. तो आपने 3-4 कोर्स ऑफ एक्शन लिखा, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं विच वन यू विल चूज. तो ये बना दो कि मेरा ये एजेंडा है चूज करने का, ऑल माय डिसीजंस विल बी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट और द ग्रेटर इंटरेस्ट. तो ये चीजें आपको आंसर करते वक्त सच में बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि और आंसर शुड नॉट गो वेरी बायस्ड, इट हैज टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज शुड बी दैट शुड बेसिकली ओवरलैप विद द constitutional provision and ethos. Perfect. Very direct question, nothing to worry about. This is something that has already been asked कि इंडिया का जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का, वेस्ट का मॉडल है सेक्युलरिज्म का, इसको ये कंपेयर करने की बात कर रहे हैं. देयर वी नो दैट इंडिया का जो अपना है व्हाट इज धर्मनिरपेक्षता, व्हाट वी कॉल, तो वही हमारा उसका जाता है, उनका जो है कंप्लीट सेपरेशन भाई. तो ये दो तरीके से आप वेस्टर्न सेक्युलर प्रिंसिपल हमारे, बिकॉज इंडिया हैज व्हाट, अगेन यहाँ पे भी आप थोड़े थोड़े एंगल्स दे सकते हो और व्हाट वी कॉल्ड एज आप सोसाइटी में जो सेक्युलरिज्म पढ़ोगे ही पढ़ोगे. एक्चुअली में 2 क्वेश्चंस आए हैं GS1 में कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है. दूसरा क्वेश्चन आया व्हाट कैन वेस्ट लर्न फ्रॉम द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. तो सेम इट है वेस्ट, and this is seen, this is a question of society also, if you see, because secularism is something we study in society only. तो वहां से मैंने पिकअप करा था इंडिया के जितना भी आपका प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल टर्म जो है, धर्मनिरपेक्षता हो गया, हमारा जो सैलेड बॉल मॉडल है कि भाई वी आर नॉट ट्राइंग टू मेल्ट ऑल द सिविलाइजेशन एंड ब्रिंग देम अंडर सिंगल रूल, वी गिव देम, यू नो, वी आर मोर एकोमोडेटिव देन एसिमिलेटिव. तो ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वोकैबुलरी ऑफ द सब्जेक्ट विल मेक योर आंसर लुक मोर लाइक इनफॉर्म, यू लुक लाइक अ मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन. तो ये आंसर जो था डायरेक्ट ही था. अब इसमें भी आप, मैंने इसको कैसे शुरू किया था, आई डोंट नो इफ दैट गोस, मैंने यूसीसी से शुरू कर दिया, बिकॉज भाई बात हो रही है यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्मिटी की थोड़ा बहुत. तो अगर आप सेक्युलरिज्म एक्सप्लेन करना चाहते हो, रिसेंटली द उत्तराखंड जो थी, दे केम अप विद द यूसीसी, आइडिया वाज टू हैव अ यूनिफॉर्म कोड फॉर एवरी रिलीजन, फॉर एवरी इन द कंट्री, which is in line with Indian principle of the Western इतना मॉडल. क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सबको वो नहीं करा है ना, हमने सबको उनके राइट्स दिए हुए हैं. ये नहीं है कि जस्ट assimilate, but we are trying to have a uniform code so that rights of people in a particular religion, ऐसा ना हो कि हिंदू women are more at a better position than the Muslim women. तो ये चीज का थोड़ा सा आप एंगल दे सकते थे, because UCC was one way to secularize. तो ये चीज करके मैंने शुरू किया. I don't know if that went, I don't know, but I went with that. UCC से शुरू करा. उत्तराखंड का वो स्टेट का न्यूज में था भी, UCC is also about uniform कोड. फिर मैंने कहा कि 2 हमारे पास यूसीसी है. अब ये क्यों मैंने किया था, व्हाई दैट केम इन माय माइंड, आई विल टेल यू. बिकॉज़ जो गोवा का यूसीसी है वर्सेस उत्तराखंड का यूसीसी वाज इन न्यूज. तो हमें ये पता चलता है गोवा का यूसीसी वाज ऑन पोर्टुगीज लाइन एंड दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट assimilation, that talks about single. But उत्तराखंड वाला जो हुआ है, it is not about that. It is giving protecting rights of tribals. It is talking about rights of, it is just keeping a
ethos are same, Correct. rules are not same. Correct. मतलब ये मुझे लगा, तो ये चीज से मैंने शुरुआत करी कि भाई इंडिया का यूसीसी आया है, बट इट इज नॉट अनलाइक द यूसीसी इंप्लीमेंटेड इन गोवा, इट एम्स टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ एवरी रिलीजन, जो उनके कस्टम्स एंड ऑल दैट हैज टू बी प्रिजर्व। तो वो करके मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद सिंपल वही आपका जाता है, इंडिया का सेक्युलरिज्म, यूएस का दिस बिकॉज सिंपली लिखा है डिस्कस करना है इंडिया एंड कंपेयर इट विद सेक्युलर प्रिंसिपल। तो डिस्कस जब मैंने करा तो इसमें मैंने कुछ टर्म्स मेंशन कर दिए, धर्मनिरपेक्षता, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, पॉजिटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये सारी चीजें सो ये सारी चीजें जो हैं, आई वेंट अहेड विद दैट सो दैट यू हैव यू नो एक तरीके से आपने, क्योंकि एक टर्म है डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, फर्स्ट पार्ट, देन इट इज एंड नाउ कंपेयर इट विद द सेक्टर। मैंने डिस्कस में 3-4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो थे वो मेंशन कर दिए, देन आई वेंट फॉर कंपैरिजन एंड देन आई गिव लाइक वो उसके फॉर्म में, सो दैट वी हैव प्रॉपर्ली कंप्लीटली अच्छी तरीके से वी डिस्कस्ड इट। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डायरेक्ट कॉपी भी है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स। अगेन सी इफ वी लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज अ डायरेक्ट कीवर्ड फ्रॉम द सिलेबस। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा ही हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला है कि सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ये स्टेटमेंट है दिया है, फिर बोला है बट it is yet to reach its full potential. You have to identify the factors that is hindering the realization of its promise and suggest measures. पहले उन्होंने क्या बोला, सिटीजन चार्टर है पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो मतलब आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर पहले तो बताना है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो उसमें आएगा आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन आता है yet to reach its full potential, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन या सेटबैक्स जो हैं वो आपने मेंशन कर दिया, एंड देन गोज योर वे फॉरवर्ड। तो ये वैसे ही जैसे नोट्स बनाते हैं कि व्हाट इज द सिटीजन चार्टर इज फर्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो वो चीजें, अब वे फॉरवर्ड में जैसे एक सेवोत्तम मॉडल है वो हम कोट करते हैं कि ये करने की जरूरत है, साथ में अब लिमिटेशंस क्या ही क्या है कि वन साइज फिट्स ऑल दे आर फॉलोइंग, देयर इज नो लैंग्वेज इंक्लूसिविटी दैट एग्जिस्ट, एंड देन देयर इज लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ रेगुलर अपडेशन। तो ये सारी चीजें जो बहुत ही कॉमनली एग्जिस्ट करती हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा भाई, वी कैन लर्न फ्रॉम द सेवोत्तम मॉडल, रेगुलर अपडेशन करो, लैंग्वेज इंक्लूसिविटी करो, पीपल्स पार्टिसिपेशन करो, रेगुलर अपडेशन करो। हर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्पेसिफिक सिटीजन चार्टर होता है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच मत रखो। सो दिस इज समथिंग दैट डायरेक्ट सिलेबस का कीवर्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। वी कुड हैव वेंट अहेड विद दिस, दिस वाज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन आई विल से, बिकॉज़ 15 मार्कर में बहुत ये इजीली प्रेडिक्टेबल हो गया ना, फिर यू कैन स्कोर अ रियली रियली गुड मार्क्स इफ यू हैव पार्ट दे दिए इसमें आराम से। तो आपने खुद ही ये शुरू से शुरू करो कि भाई सिटीजन चार्टर आई थिंक ये हमने यूके से और समथिंग से फॉलो किया है, तो आई स्टार्टेड विद दैट ओनली, एंड और यू कुड हैव स्टार्टेड देखिए अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट का फोकस हैज बीन ऑन मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। चला भी था कि हर जगह सिटीजन चार्टर को वर्नाकुलर लैंग्वेज में कर दो। हाँ, तो ये चीज मैंने इसको स्टार्ट ऐसे करा था टैगलाइन से, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। उसके अंडर इफ यू लुक एट इट, तो सिटीजन चार्टर हैज बीन वन ऑफ द लाइक, इस तरीके से आप इंट्रो कर सकते थे इसका। एंड देन व्हाट इज अ सिटीजन चार्टर, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड देन टू इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेशन, लिमिटेशन क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है दिस। तो वी कैन एंड कर सकते हो कैसे कि इट्स अ रियली गुड स्टेप टू इंश्योर ऐसा, बट because of these certain reforms are needed to make it, to ensure that it reaches its full potential. तो ये भी बहुत ही डायरेक्ट लाइक क्वेश्चन था जिसमें नथिंग टू लाइक कुछ सोचना नहीं था ज्यादा। इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, द इंडियन शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ द सिस्टम, सजेस्ट सम मेजर्स इन विच स्टेट कैन एनहांस रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट द ग्रासरूट लेवल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिकॉज इट इज बहुत इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा था जैसे मेडिकल टूरिज्म के केस में था, मतलब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि किस तरीके से दूसरे कंट्रीज भी आ रहे हैं इंडिया में फॉर मेडिकल थिंग, बट एक अब ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले रैकेट्स चल रहे होते हैं ऑल ऑफ दैट, तो एक ये बैक ऑफ द माइंड में आपके पास ऐसे डायमेंशंस थे। तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट जैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization. ये also आया था कि I remember हाँ कि last year in interview question था मेरा बहुत ज्यादा कि they were talking about a fixed income for the doctors. They were talking about a fixed income for the doctor. वो डिबेट एक बार चली थी लास्ट टाइम, आई गॉट दिस क्वेश्चन इन लॉट्स ऑफ मॉक आल्सो। तो आई थिंक मुझे लगा था ये उसी से ये क्वेश्चन उठ के आया है कि क्या वी शुड हैव, क्योंकि मार्केटाइजेशन इज अ थिंग जिसकी वजह से प्राइसेस वैरी कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाओ, ही इज डूइंग, उनकी फीस 1000 है, किसी की 2000 है, किसी की 500 है, तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ही है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि स्टेट शुड गेट इन और रेगुलेट कर दे उन चीजों को। सी आप अगर रेगुलेट कर दो, आप प्राइसेस फिक्स कर दो, फिर सर्विसेज में वो नहीं आएगा ना, फिर वही प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन फिर कम, फिर एक तरीके से आपने उसको क्या कर दिया, यू हैव मेड इट मोर पब्लिक। तो भाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल है आप देखो, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो इनोवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट विल, तो एक तरीके से आप टोटली तो
नहीं ही कह सकते हो. They have said कि in a crucial domain like this should, उन्होंने पूछा है, India should play a vital role to contain impact, suggest some measures through which state can enhance reach of public health care. तो अब ये अगेन इको सर्वे का टॉपिक अगर आप देखो हेल्थ का, उसमें अच्छी तरीके से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, दैट इज समथिंग यू कुड हैव टेकन हियर इनटू कंसिडरेशन. तो अभी ये चीज हुआ है कि भाई अब मैंने इसे स्टार्ट करा था विद द डेटा कि इतना परसेंट जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी से थोड़ा कम ही है अभी. सो दैट डिमांड्स, अब क्योंकि क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जा रहा है कि ऐसा है हम चाहते हैं. इट इज नॉट आस्किंग यू, दे आर सेइंग इन दिस क्रूशियल डोमेन Indian state should, that they're not asking it in a form of question. That should Indian state play? They're saying Indian state should play a vital role to contain. तो मैंने स्टार्ट किया था कि भाई 0.7% एक्सपेंडिचर है. आई थिंक 2% एक्सपेंडिचर नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन ने बात करी है उसकी. तो मैंने कहा विच इज वे लेस देन दैट. दिस डिमांड द प्रेजेंस ऑफ इंडियन स्टेट टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस द मार्केटाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर. तो दिस वाज एन इंट्रो जिसमें आपने एक्सपेंडिचर की भी बात कर ली, जिसमें आपने टारगेट की भी बात कर ली. यू हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट how government needs to step in. इतना लिखने के बाद then I went with these measures. This means I have mentioned, then I mentioned issues with the Indian healthcare system. ये भी मुझे इको सर्वे से ही मिला था कि कितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, कितना लोगों का, मतलब अगर जो प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या वो है कॉस्ट, सेकेंडरी हेल्थ केयर का क्या है कॉस्ट एंड ऑल. देन आई वेंट विद द गवर्नमेंट. तो डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन हो गया या जो भी डिजिटल हेल्थ मिशन जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाले जो हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हैं, ठीक, ऑल ऑफ दैट आई मेंशन्ड एज the measures or the steps that have been taken. Suggest some measures जहां पे आते हैं, अब आपको खुद के जब वे फॉरवर्ड मेजर्स बताने हैं वहां पे, then you can go ahead with जो आपको लगता है कि कुछ गवर्नमेंट ने वे फॉरवर्ड की तरफ प्लान किया हुआ है. That was there in the economic survey in the health section. I mentioned it all from there only. So it went that way because I realized it was also a topic of the current affairs only, but इसको इन्होंने बहुत ही डेफिनेट वे में पूछ लिया था because they directly are saying कि we want government participation in order to ensure कि भाई मार्केटाइजेशन ना हो. तो यहाँ पे आप खुद से नहीं कर सकते. जैसे अभी मैंने बताया इंटरव्यू में जब उन्होंने पूछा था कि शुड इट गो दैट वे, तो आई हैड अ पॉइंट टू से कि आप फिक्स कर दोगे इनकम और समथिंग, तो वो फिर वो इनोवेशन खत्म हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर का फिर जो इंसेंटिव है उनका खत्म हो जाता है. सो दे वोंट गो फॉर दैट. बट यहाँ पे दे आर नॉट लिसनिंग ओनली टू द नेगेटिव, दे वांट कि नहीं गवर्नमेंट को लेकर आओ, तो व्हाट शुड बी डन. तो ये चीजें मैंने करी थी. सो आई वेंट विद द डेटा एंड फैक्ट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ. स्कीम्स भी गवर्नमेंट की ही लिखी एंड दैट्स हाउ आई अप्रोच दिस क्वेश्चन. राइट टू हेल्थ बिल भी आ गया था वो राजस्थान वाला. हाँ. तो वो भी पब्लिक हेल्थ केयर का रीच बढ़ा देगा. तो that is something that could have been mentioned as well in this. All right, then if we talk about question number 18, e-governance. Now this is one of the, that as I mentioned, term है, प्रॉपर सिलेबस का टर्म है गवर्नेंस का. ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट इज मच अबाउट मल्टीफेरेस इंटरैक्शन फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, इन्होंने ये चीज कह दी कि ई गवर्नेंस इज नॉट अबाउट, हमें क्या लगता है ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल गवर्नेंस, सो इट मींस इट स्टार्ट्स एंड एंड विद इनकलकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी इनकलकेट करना हमारा रोल नहीं है, इट इज अबाउट इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. इन दिस कंटेक्स्ट इवैल्यूएट द रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस. अब ये एक टर्म है, इन्होंने ये चीज अगर इतनी पूछी होती तो वी वुड हैव गॉन ऑल इन विद ई गवर्नेंस, बट दे हैव मेंशन्ड कि भाई इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल. अब ये टर्म नेम से ही हम डिकोड कर सकते हैं. मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऐसा इस पे प्रिपेयर्ड नहीं था बिकॉज इन दिस यू हैव टू इवैल्यूएट द रोल ऑफ. अब इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल से मैं इतना तो समझ गई, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर एंड दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू मेक इंश्योर. तो ये आपने एग्जांपल्स आई हैव गिवन ऑल द जितने भी इको सर्वे में डिजिटल टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स दिए हुए थे, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हो, चाहे वो आपका हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, ऑल ऑफ दैट कुड हैव बीन परफॉर्म्ड बिकॉज ये सारे के सारे एक तरीके से तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही ले रहे हैं ना. इवन इन एमजी नरेगा इफ दे आर टॉकिंग अबाउट दोस यू नो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, व्हाई दे आर डूइंग सो दैट्स टू हैव अ प्रॉपर डिटेल्स एंड एवरीथिंग. बट इसके आपको क्योंकि इन्होंने इवैल्यूएट करने की बात कही है तो यू विल हैव टू ब्रिंग इन द नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो. तो वहां पे आ जाएगा कैसे डिजिटल लिटरेसी कम है इंडिया में, कैसे यू नो पेनिट्रेशन ऑफ द डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो कम है, डिजिटल लिटरेसी इज कम, डिजिटल पेनिट्रेशन कम है. फिर देयर आर आल्सो इश्यूज विद पीपल अंडरस्टैंडिंग के स्मार्टफोन्स कैसे विमेन, वो रीजनल इंबैलेंस रूरल अर्बन एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जेंडर इंबैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मेल्स हैव मोर स्मार्टफोन देन द फीमेल्स. तो ये सारी चीजें आपको लिखना कि आप इंटरैक्टिव तो बोल रहे हो बट यू नॉट इंश्योरिंग इंटरैक्शन ऑफ लाइक प्रेजेंस ऑफ
एवरी स्टेक होल्डर, विमेन में भी उतना कम पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहां पे लोअर कास्ट के पीपल कम, रूरल पीपल का पार्टिसिपेशन कम है, तो उसके लिए गवर्नमेंट नीड टू गेट अहेड विद सम ऐसे टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सेक्शन. सो दिस वाज अ मच प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन. बिल्कुल बिल्कुल. ई गवर्नेंस पे तो आपके पास कंटेंट फॉर्डर प्रिपेयर्ड है. इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, जहां वो बोल रहा है कि भाई सारे के सारे रहो और तब इंटरैक्ट करके यू गोइंग हेड, तो यू कुड हैव मेंशन्ड दोस स्कीम्स. तो दैट इज व्हाट आई डिड हियर. परफेक्ट. Okay. Now again, if it again 19 and 20 question is both from IR if I am not wrong. Ha. So let's go. These are the last two questions again from the IR aspect. Terrorism पे question है. It has become a significant threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at international level. It is similar to last year, I think. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो पूछ दिया था बहुत स्पेसिफिक. अब कोई भी, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज स्टडीड एनी स्पेसिफिक थिंग रिलेटेड टू दिस थिंग. हम पढ़ते हैं काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, तो वहां पे टॉक अबाउट रैट्स आल्सो, वी टॉक अबाउट 1257 आई थिंक सैंक्शन कमिटी आल्सो. तो हम वो चीजें लिस्ट में पढ़ते हैं. वी डोंट हैव वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ दिस, बट फिर वही दिमाग लगाया कि काउंटर टेररिज्म कमिटी है तो वो क्या ही हो सकता है. सो वी वेंट विद दैट ओनली कि वो चलो वो बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन है दैट तो वी कैन मेंशन. दिस शुड नॉट गो लाइक ब्लैंक. अब काउंटर टेररिज्म है तो मींस they are trying to highlight, they are trying to create a list, they are trying to like flag them, they are trying to have, तो ये सारी चीजें I have mentioned as a similar. तो उसमें उन्होंने पूछा कि ये चीजें इफेक्टिवनेस बताओ इसकी. तो फिर अब आ जाता है कि भाई क्योंकि यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वीटो पावर दैट एग्जिस्ट विद अदर कंट्री. आप मसूद अजहर का केस है हाईलाइट कर सकते हैं कैसे चाइना बार बार वीटो कर दे रहा है. तो दैट इज, तो इन्होंने पूछा ना इफेक्टिवनेस क्या है, तो बोल क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म कमिटी तो है, बट क्योंकि वहां वीटो पावर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट, तो ये जो कंकरेंस है वो नहीं आ पा रहा है बहुत ज्यादा. दैट इज क्रिएटिंग एन इशू. I was not aware about it, associated bodies, to be very honest. मेरे पास इसका तो नहीं था कि because it is talking about its associated bodies as well. I just went with counter terrorism committee and then I mentioned the issues. क्योंकि I don't know what are the associated bodies of CTC. नहीं पता था, वो बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लिया था. तो इन केस में यू नीड टू गो विद अ वेरी, क्योंकि नहीं पता है तो यू कैन ब्लफ हियर ना, आप कुछ नहीं लिख सकते. सो आई वेंट विद दैट. तो टेररिज्म पे आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, आप इसकी बात कर सकते थे. आप कोई तो डेटा से शुरू कर सकते थे जो टेररिज्म का दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट, एंड देन यू कुड हैव वेंट विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. तो वही बेसिक चीजें मैंने लिखी. इफेक्टिवनेस में पॉजिटिव्स मैंने लिखा कि कैसे ग्लोबल लिस्ट हो जाएगा, कैसे सैंक्शंस हो जाते हैं. दिस इज आल्सो लाइक डेटरिंग अदर कंट्रीज हु आर गिविंग सेफ हेवन, तो उनको भी डेटर कर रहा है. तो इसका पॉजिटिव्स में ही हो गया. नेगेटिव्स में क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एम्बिट में वर्क कर रहा है, तो वीटो पावर वाली चीज हो जाती है. जो कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड है, मोस्ट अफेक्टेड है, उनका प्रेजेंस इस सिक्योरिटी काउंसिल में निल है और जीरो है. तो दैट इज आल्सो क्रिएट्स एन इशू. तो ये नेगेटिव्स में मैंने लिख दिया. आई डिड नॉट गो विद एसोसिएटेड बॉडीज, बट अदर वे फॉरवर्ड में आई मेंशन टॉक्ड अबाउट रैट्स, आई टॉक्ड अबाउट 1257, आई टॉक्ड अबाउट हाउ G20 को इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया था, टॉक अबाउट काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स. सो आई मेंशन्ड सम ऑफ देम टू इंश्योर कि भाई आंसर आपका थोड़ा होलिस्टिक लगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो नहीं आ रहा है. तो आप इसको थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको कुछ अलग से अगर आप वे फॉरवर्ड समथिंग आप दे पाओ, अगर कंटेंट है आपके पास दैट गोज इन लाइन विद द टॉपिक, दैट विल बी मच मोर लाइक बेटर. सो दिस इज व्हाट आई डिड. So everybody has to understand that there will be questions जो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भी नहीं आते होंगे, क्योंकि वो है वैसा ना, मतलब इट कैन आस्क IMO पूछ लिया, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. दैट्स कंप्लीटली ओके. बस ये सोचो एग्जामिनेशन में कि इस पे अपना बेस्ट क्या कर सकते हो, जितना भी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म से याद आ रहा है वो दे के आओ. देन यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन ब्लफिंग, लाइंग एंड इन बीइंग स्मार्ट. तो एसोसिएटेड बॉडीज में कोई रैंडम नाम फेंक दोगे तो वो गलत है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल गलत हो जाएगा वहां पे. रेदर देन दैट गो फॉर अ स्मार्ट अप्रोच कि अच्छा एड्रेस करने में, मिटिगेट करने में, इन वर्ड्स से सोच के स्ट्रक्चर बना के आंसर को लिखो. उसका कोई बात नहीं आ रहा था, बिकॉज देन इट इज देयर दैट डेफिनेटली विल हैव सम ऑफ देम जिसका आंसर आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा. हां, अच्छा, इट्स एंड ऑफ द पेपर. डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ, ओके, मालदीव्स क्यों न्यूज में था, इंडिया आउट कैंपेन, न्यू गवर्नमेंट, तो इंट्रो तो वहीं से आ गया. इंट्रो तो आपका करंट ही आएगा. उसके बाद यू हैव टू डिस्कस इट्स जियोपॉलिटिकल. एक हेडिंग मैंने ये दी थी, एक मैंने जियो स्ट्रैटेजिक दी थी विद फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज. मतलब पॉलिटिकल में भी इन्होंने दो एस्पेक्ट्स दे दिए हैं. फर्दर आल्सो डिस्कस हाउ दिस रिलेशनशिप अफेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल. इन्होंने बहुत से कीवर्ड्स दे दिए हैं इसमें ऑलरेडी, इफ यू वुड हैव गॉन विद इट. अच्छा, मुझे ये भी याद था कि वो जो रेड सी क्राइसिस हुआ था लास्ट टाइम, तो व्हाट हैपेंड, दिस जोन बिकेम मोर और लेस
affected. तो अब सारी बोर्ड्स, देयर वाज अ क्वेश्चन कि सारी बोर्ड्स का वो जो जोन है वो इंडिया के यहाँ से पास करेंगी, जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ रहा है, मतलब ये हमारा उसके अंदर आ रहा है, दैट कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया. तो ये जो चीज उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लो बोला था, तो एक डायमेंशन तो मैंने ये भी इंक्लूड किया था. तो इसमें इंट्रो क्या हो सकता है आपका? इंट्रो कुड हैव बीन द करंट कंटेक्स्ट, किस तरीके से भाई रीसेंट चेंज इन regime in your Maldives has impacted India Maldives का relation, but India Maldives being located in the Indo-Pacific makes it a very important geostrategic partner for India. तो ये आप इंट्रो में अगर आप दे देते हो तो इससे हाईलाइट आपने कर दिया कि अच्छा ठीक है, रिसेंट में ये चेंजेस हुए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो इंडिया नीड्स टू हैव अ गुड रिलेशन विद देम. तो यहाँ पे मैं ये चीज मैंने मेंशन की. देन यू हैव टू, देन जियो पॉलिटिकल एंगल पे मैं गई, जियो स्ट्रेटेजिक पे मैं गई. तो पॉलिटिकल एंगल की अगर आप बात कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल ये नेबरहुड का एक पहला मतलब इमीडिएट नेबरहुड का मेंबर है, चाइना का प्रेजेंस यहाँ ग्रो कर रहा है. फिर उसके बाद आप बात कर लो किस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ये आ रहा है, ठीक है. तो इनका ये कॉम्बिनेशन में आप बात कर सकते थे, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, इसका एनर्जी हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, या फिर इमीडिएट नेबरहुड हो गया. इंडो पैसिफिक में इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है ऑफ बीइंग अ ओपन एंड फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक वाला, उसके लिए तो इन सब चीजों के साथ इंडिया के गोल से ये इसका प्रेजेंस जो है वो अलाइन कर रहा है. बट चैलेंजेस ये है कि चाइना का प्रेजेंस वहां इंक्रीज कर रहा है. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की आप बात कर लो, ठीक है, ग्रोइंग. उसके बाद इस वजह से इंडिया जो है किस तरीके से मॉरिशस के साथ आई थिंक some of the island they have opened an airstrip or something. तो बताओ कि भाई वो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस है. You have to talk about how their relationship is going to affect the maritime security. तो अब इस तरीके, अब maritime security के कुछ dimensions होते हैं, लाइक ट्रेड के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, डिजास्टर के रिस्पेक्ट में हो. सो ऑल ऑफ दैट you need to mention. Then you talk about regional stability. तो India wants to be what there is a term, provide first हाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन टर्म्स ऑफ इतना. तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू ही आप ये पूरा जस्टिफाई कर सकते थे कि भाई इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू ही. फिर उसके बाद आप मेंशन करो ना कि कितना डिस्पाइट द चैलेंजेस एग्जिस्टिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज इनवाइटेड हिम, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो वो थोड़ा गुडविल भी शो करने की कोशिश करो. किस तरीके से जब वाटर का स्कार्सिटी का इशू हुआ था तो इंडिया ने ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया था उनको. कोविड के टाइम कैसे इंडिया हैज फोकस्ड ऑन वैक्सीनेटरी एंड ट्राइंग टू, तो वो शो करता है कि भाई इंडिया अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस एंड दैट्स व्हाई. तो ये भी क्वेश्चन पूरा ही करंट अफेयर्स बेस्ड था क्योंकि इट वाज देयर इन द न्यूज़. तो बहुत प्रेडिक्टेबल था कि इंडिया मालदीव्स रिलेशंस तो आने ही वाला है. जैसे इंडिया श्रीलंका का रिलेशन बहुत ही प्रेडिक्टेबल था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वो जो भी उनका हुआ था, एंड इंडिया प्रोवाइड देम लाइन ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा. तो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. अब चाइना का ये है कि बहुत ही ज्यादा एक ऐसा डेफिनेट स्टैंड नहीं है. इंडिया इज गेटिंग एग्रेसिव टुवर्ड्स चाइना एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो ऐसे इंडिया चाइना रिलेशन पे स्पेसिफिक नहीं पूछ सकते हैं जियो स्ट्रेटेजी को. ये इंडिया का चाइना का विस अदर कंट्री, चाहे वो वेस्ट एशिया में पूछ ले, चाहे वो इंडो पैसिफिक में पूछ ले, चाहे वो सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में पूछ ले, तो चाइना के साथ दे आर गोइंग टू आस्क विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड डायमेंशन. दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली टॉक लाइक दिस विद इंडिया चाइना. तो ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल था आई थिंक. सो वी वेंट लाइक दैट. Right. Awesome, perfect. So again, with the discussion of these 20 questions, a single take में the 20 questions have been discussed, and this would have made you realize कि भाई it actually takes a lot of efforts, है ना, ऐसे नहीं होता. It takes a lot of efforts to understand a lot of things, then decode them, then prepare for them. So as I always say, it takes a lot of effort, I tell you, for mains, because mains is something क्योंकि they are going to read your viewpoint. तो it is not something आप bluff कर लो and it will work. I don't know, मतलब ये होता है, इसको मैं myth ही बोलूंगी, that people say write anything and come and you are getting marks for that. नहीं. This is a very big myth. That is why I say कि भाई speed पे तो practice करो. I don't favor something called as half length test इसी वजह से, क्योंकि भाई ये होता है ना, एक्चुअल चैलेंज स्टार्ट्स आफ्टर 1.5 आवर्स, क्योंकि तब ब्रेन क्लॉग्ड हो गया है, आपको टाइमर दिख रहा है, आपका हैंड्स पूरे फ्रीज है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट द पेपर इन नेक्स्ट 1.5 आवर. अब ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ऐसे एनालिटिकल टाइप है जिसमें आपको सोचने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा. सो यू कांट थिंक कि भाई बस मैंने देखा क्वेश्चन में लिखना शुरू कर दिया. इफ यू डोंट जनरेट डायमेंशंस, इफ यू डोंट आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स, इफ यू डोंट आइडेंटिफाई द हेडिंग्स, तो कुछ ना कुछ मिस होगा एंड दैट विल कॉस्ट यू मार्क्स. तो थोड़ा सा यू विल हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल यू आर अटेंडिंग मेंस. और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी टेस्ट में वो चीजें प्रैक्टिस करो सो दैट इट कम्स इन. Absolutely. Perfect advice, perfect discussion. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so A much. lot of effort went, and I again would hope that it serves the best of your interest. तो जो भी इसका अच्छे से यूटिलाइज करेगा, they will definitely get a lot to learn. मतलब यहीं से 8-10 केस लॉज, 8-10 आर्टिकल्स, 8-10 डिमेंशंस आप लिख के आ सकते हो just by this.
sheer discussion. Thank you Yeah. so much. Thank you so much, sir. Thank you. We'll be meeting again for the GS3 discussion. Yes, They will sure. take. Okay. Also a disclaimer that I don't have a very good marks in GS3, so idea will be just to tell my approach. yes, Okay. yes, And absolutely. always take it with a pinch of salt. It's nothing. absolutely. There is no one strategy in UPSC. Something आपको पता होना चाहिए. So and that's why telling it beforehand only. कि don't wait कि चलो I'll tell something new there. I don't know. We work equally hard for all the papers, but कभी-कभी वो click नहीं करता है किसी subjects में. For me it was GS3. Maybe because I didn't go very specific, or maybe some or the other fault was there. Otherwise जो मेरा था way of attempting, that is something I'll be Same. sharing. बिल्कुल. ठीक है. Great. Thank you so much, and all the best to all of you who are watching this. And thank you so much for being Thank you here so much. again. It Thank really you. means a lot. Thank you so much. Thank you so much.